Hello. Good evening. Jai Shri Ram to everyone. Hello. Good morning, good evening, good afternoon. Um, Today's session, all waited. Thank you very much. And apologies for the delay. Uh, आज का सेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे एंड देखिए ज़्यादा एकदम डिटेल और डीप में तो जाना नहीं है. दैट्स नॉट व्हाट द टॉपिक और द सेशन इज अबाउट. It's let's talk about love, sex एंड जेंडर. ओके, ये तीन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बात करने से वी आर बिट शाय एक्चुअली, शाय अबाउट इट. एंड my goal actually, I wouldn't say a goal actually, what I wish to do is uh, start talking about it in a different way. देखिए ये टॉपिक पे तो ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है, काफी सारी वीडियोस हैं ओके यूट्यूब पे या दूसरे चैनल्स एक्सेट्रा में. um, I'm gonna try to I'm gonna try to use the same topic but try to give you a different point of view. That is my goal actually. And just a bit of TNCs and just normal stuff to say. See, all these conversation what we are having or discussion we are having, it's it's not targeting anyone, either it's religion, sex, gender, race, or their beliefs or emotions, etc. It's just an open discussion. Okay, I'm just sharing my view. As I said, I've got slightly unorthodox view. I look in a different way for all for anything that is in front of me, and I wish you get my point, what I'm trying to share with you. And if you don't get it, it's all right, actually. Or if you don't agree with me, also, it's cool, actually. We are still YouTube friends. Yeah. Um, कुछ बात आप अग्री करोगे, कुछ नहीं करोगे, and that's totally fine. और या कुछ आपके खुद के views रहेंगे, and that's absolutely fine. Please do share though. Okay, don't keep it inside. Please do share. Now, okay, let me see how many. I've just got a lot of bombarded with comments. Whom do we have? Max, you have Max S. You have one today. You're number one who got in the chat room. Welcome board. Gaurav Gupta ji, bhai sahab, namaskar. And we got Dharam Patel. Sorry, my apologies. Dharma Patel. And we have Rachna Kirjaji. Even Varun is also there in the chat room today. And Abhay Bhai, namaste. Venki Bhai, namaste. And there's more to come actually. Oh, Judy Damle, hello. Kezad Banerjee, hello, sir.
आई जस्ट यूज द वर्ड सर। ओके, कोई बात नहीं, चलो शुरू कर दें इस पे। देखिए, we these you don't need definitions of what is love, sex and gender. इसके ऊपर आपको कोई डेफिनेशन वगैरह तो चाहिए नहीं। एंड लेट्स स्टार्ट विद ईच एंड एवरी वन एट अ टाइम। और जो मैं शेयर कर रहा हूँ, दे आर 2 to 3 different stories, okay, and they are someone's story. But as usual, this common man is always there when these kind of stories happen, you see. So that's what I'm sharing. So I can say it's my experience, okay. um for I'm not going to take the real people's name, etc. तो जो कुछ भी मैं नाम वगैरह लूंगा, it's totally fictitious, okay. And यहाँ पर देखिए, आज के सेशन में इट्स ये तीन जो है, ओके, लव, सेक्स, जेंडर, तीन दिक्कत, इनको ही लेके तीन डिफरेंट मैं कहानी बोलूंगा, या दो या तीन कहानी बताऊंगा मैं। और गोल इज टू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट discrimination, we're not talking about unfairness, we are talking about this is what is there in the world, it already existed, पहले से भी था, बहुत टाइम से था, आज भी है। आज के डेट में कैसा दिखा जाता है या देखा जाता है और क्या होता है, एंड एट द एंड द कंक्लूजन, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, ये मैं आपसे ज्यादा करके शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी सोच कैसे चेंज होती है, आपकी परसेप्शन क्या होती है, दैट्स टोटली अप टू यू, आई लीव इट अप टू यू। मेरा कोई इरादा नहीं है आपको सीख देने का या सिखाने का। There's a lot of things what you guys know. As a मैं पहले भी कह चुका हूं, I'm not a subject matter expert on any subject or any topic. जो देखता हूँ, जो एक्सपीरियंस है, जो सही लगता है, जो दिखता है, वो शेयर कर रहा हूँ। I may be right at a lot of things, I may be wrong at a lot of things. It doesn't matter whether I'm right or wrong, but this is what I'm sharing है, ले लो। अब रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि जब आप ज्वाइन करोगे, प्लीज टॉपिक पे रहिए पहली बात तो, और ध्यान से सुनिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मैं बता दूं कि क्या ये आज का सेशन नहीं है, ठीक है। आज का सेशन इज नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, आज का सेशन इज नॉट अबाउट violence or sexual attacks or violence, etc., whatever. That's not what it is, okay. Today's topic, what it is about we human beings, we people in the world, ठीक है। और हम इंसान का नजरिया, हमें क्या दिखाया जाता है, पैदा हुए बचपन से क्या दिखाया जाता है, बड़े होते हैं जैसे ग्रो अप होते हैं, सोसाइटी में क्या मिलता है, और उससे लेके हम क्या सीखते हैं और कैसे इवॉल्व होते हैं और कैसे हमारी मानसिकता, अगेन अ माइंडसेट, हाउ इट इज देयर, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप ज्वाइन करेंगे 2 मिनट तक रखिए, छोटा रखिए ताकि और भी लोग हैं, और अब पॉइंट पे क्वेश्चन पूछिए, दैट्स माय ओनली पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके। राइट, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो लव, व्हाट इज लव। लव तो बहुत सारा चीज है, बहुत बहुत जगह पे वेरियस टाइप ऑफ लव इज एवरीवेयर। We got love for our gods, we worship them, we pray for them, love, we love our family, love वहां पर भी है। I love my kids, love है। सामने खूबसूरत लड़की जा रही है, I fell in love, उसकी दोस्त आई और उसकी दो दोस्त, I even fell in love for them also, so love is there, ठीक है। Love for your spouse, love, and which is for what you're into actually. It could be some sort of study, some sort of research. You're a sportsman, you love that particular sports, or you're interested into those sports. So there's a lot of different way when we say love, various different type of loves, etc. Okay. um, I just love to talk, or I just love to make friends. Love for food, excellent, Dharma Patel. Love for food, how come I missed that, thank you. Love for food, I just love to eat, I love to go to the gym. I love to compete, I love to make new friends. ठीक है?
I just love to share, or I just love to meet people because I'm a very social person. So plenty of these when it comes to love. Okay. um अब ये तो देखो अलग अलग टाइप का. Yes, सोनल, love for self, absolutely right. Also there is एक और है कि when it comes to love with someone else, that's someone special. ठीक है. uh, Again, I know I'm gonna keep aside all those other marriage and everything. So let's. Um, मेरे लिए बहुत हार्ड है आज का सेशन एक्चुअली, तो आई एम गोना ट्राई टू कीप माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कॉन्टेक्स्ट में रहूं जो मैं कहना चाहता हूं, ताकि मैं बाहर नहीं जाऊं. सो लव फॉर, I just love my spouse actually, or just I fell in love actually when I saw someone, I met someone, that special feeling, you see. Okay, so these are different loves, I would say, call them the list of loves or whatever, various type of loves. कमी नहीं है. Okay, we love environment. Okay, fine. All right. So this was love. We talk about sex. Sorry, भी मतलब सब ओके एवरी जैसे वर्ड यूज किया, सेक्स, सबको अभी कुछ ना कुछ बत्ती जल गई रहेगी कि क्या होने वाला क्या नहीं होना. ठंड रखो यार, which we are not going in detail. I don't want to know bedtime stories and everything, or your whatever you do in your bed. That's not what it is. Um, so what is sex? Sex in simple terms. Book वगैरह नहीं, statistics वगैरह नहीं, keep everything out. I'm not interested in statistics, etc. Sex is something which कि we as human beings, okay, ये क्या बोलते हैं, हमारा जो बायोलॉजी है, इसके थ्रू we need. um, we need it, or we crave for it, or it is a satisfaction. Okay, I'm just trying to keep it at a very very top level. Okay, I'm not going in detail, etc. Different type of whatever, etc. Sex, blah blah blah. Not interested in knowing. Please keep your personal stuff to yourself. Okay, so what is sex? Sex, as I mentioned, right, is just a, it's also a way of gaining happiness. Okay, it's an important part, or it's an important need of being a human. Okay, so that is sex. Sex, okay. You fall in love, you meet someone, etc., etc. Of course, you're gonna have sex. Fair enough, Or where is different. Now you're not falling in love, etc. You just are, you know, friends, good friends, etc., satisfying each other's needs, etc. Okay, whatever. So there is sex over there, sex involved, and so on and so forth. Let's keep sex over there for now, actually. Sex. From sex, now let's move to the next one, gender. Okay, it'll all connect. Bear with me, it'll all connect. Let's come to gender now. Sex से move होके अभी gender पे आते हैं. Gender, um, male है, female है, and I'm gonna say others. Okay, and I'm gonna say others actually, because देखिए मैं ये सेशन करने के लिए मैं लास्ट वीक करने वाला था, पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि आई बीन रीडिंग अ लॉट. मैं ये 10-15 साल से मैं रीड करते आ रहा हूँ, वहां से मेरी नॉलेज है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट LGBTQ, और प्लस भी उसके आगे लग जाता है, फिर बाद में LGBTQ भी आ गया था. पर मैं इसके ऊपर काफी कुछ पढ़ चुका हूँ एक्सेट्रा, और जितना ज्यादा पढ़ा हो, रिसेंटली डिबेट देखा ना, एक टॉपिक बहुत बड़ा है, और इतना यहाँ वहाँ चले जाता है ना कि यार थॉट व्हाट, मैं स्टैटिस्टिक्स जो कुछ भी रीड किया सब साइड में रखो. गोना कीप इट वेरी सिंपल एंड स्मॉल एंड कंसाइज, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उससे डाइवर्ट हो जाएगा अगर मैं सब स्टैटिस्टिक्स वगैरह और जब जो कुछ भी शेयर करूंगा. सो जेंडर, मेल, फीमेल एंड अदर्स. ओके, ठीक है, वहां तक ही रखते हैं. फाइन. हमें सबको पता है कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, स्त्रीलिंग एंड whatever, पुरुष, स्त्री पुरुष, etc. Okay, so when we speak, also there is, masculine, feminine, that's gender stuff. Sex and gender.
They are not the same. Sex is a preference. Gender is described by your anatomy. Okay? Okay. So this is what is I would say over there. Look, guys, please try to understand key. I'm not taking dig at anyone or I'm targeting anyone. I'm just expressing and trying to keep it simple as possible. Okay. And it's very hard for me. Trust me, very, very hard for me. So I'm going to carry on, irrelevant of what comments you're saying in the chat, etc. I don't care. Listen to me first, please. Before making any jumping the gun and making any conclusion, try to understand. I'm not interested in your life, neither you are. But I'm trying to share something which what I feel like I should share. Okay. I'm not interested in making a decision or anything. Neither I'm knowing not interested in your decision. Okay, let's keep it over there. Simple, please. Right. So back on sex and gender. They're two different things. Sex is a preference. Gender, जो कुछ भी मर्द है, he'll be having his own whatever details. Okay, let's say speak it a bit openly. As I said, this is an 18 plus session. Okay, it's nothing wrong. Okay, men, a male, of course, it'll have a penis, etc. So and so. A woman, a female, okay, it'll be having its breast and it'll be having its vagina, etc. And different anatomy. That's how male and female are built. Nothing wrong with it. Say, we all know about it. ठीक है? और इसमें कोई शर्माने की बात है नहीं. Everyone knows it यार. आजकल तो गूगल इंटरनेट इतना खुला पड़ा है कि इससे ज्यादा कुछ मिल जाता है ना. तो बहुत ऊपर तक की बात कर रहा हूँ एकदम. ठीक है? Cool. Now I've already expressed or I've shared the detail on what is love, sex, and gender. Okay, I'll just build the baseline over here. Let's start with the stories. Okay, uh, मैं कंपनी में मैनेजर था. मैं यूके की बात कर रहा हूँ बाय द वे. ठीक है, मैं आपको उल्टा लेके जाता हूँ, यूके से इंडिया लेके जाता हूँ. आई ऑल ट्राई माई बेस्ट. ओके, मैं यहाँ पर काम करता था एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में. दिस इज अ गवर्नमेंट कॉर्पोरेट. ओके, एंड एज अ मैनेजर, मैं एक मैनेजर था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराउंड 15 से शुरू हुई और 30 लोगों तक पहुंच गई. ठीक है, और वेरी गुड corporation, work life balance, everything, and very advanced, for a government corporation, I would say. Okay, and very, very advanced in the sense they believe in what is well being and your personal life and your office life and everything. So hats off to them. I learned a lot from them. तो मैं ये वहाँ की कह रहा हूँ. तो मेरे मेरे नीचे अलग अलग डिफरेंट रेस के लोग and diversity and what do you say, even males and females, both genders were reporting me. ठीक है, और मैं काफ़ी कॉर्पोरेट अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों से कांटेक्ट रखा था. नेचर ऑफ माय जॉब, तो काफ़ी लोगों से मेरा मिलना जुलना था. और कॉर्पोरेशन मस्ट बी अराउंड अबाउट, इन दैट बिल्डिंग वी मस्ट बी अराउंड अबाउट 1500 पीपल ऑल टुगेदर. 1500 लोग थे. तो 1500 लोग से I'll be I'll be knowing around about 1,000 people, let's say that. Okay, 1000 लोगों को मैं जानता था, और more will be knowing me because of my job. तो मेरा जो बेस्ट परफॉर्मर था, ठीक है, मेरा जो बेस्ट परफॉर्मर है, मैं उसका I'm not going to take the original names and everything, तो मैं अभी कुछ नाम बना लेता हूँ यहाँ पर. ठीक है, मेरा बेस्ट परफॉर्मर, ओके, अमित बचपन. मेरा बेस्ट परफॉर्मर अमित बचपन. एक दिन फ्राइडे को आता है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड हो जाती है. फ्राइडे दोपहर को आता है, और मेरा बेस्ट परफॉर्मर है जो कि पिछले 1-2 हफ्ते से परफॉर्म नहीं कर रहा था. ठीक, कुछ हो जाता है, चलो सबके अप्स एंड डाउन्स हो जाता है. तो मैंने उसको पूछा कि क्या बात है भाई. तो एट लास्ट उसने मेरे को बोला, करे बॉस, कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट प्लीज. कोई बात नहीं, ठीक है. और यार फ्राइडे आफ्टरनून को बंदा अगर मुझे बोलता है 1 मिनट बात करो, तो मुझे लगा कर ये रेजिग्नेशन देगा, इसको और कहाँ पर नौकरी मिल गई है. और ये ठहरा वो कैटेगरी का जो कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट कोई भी पिकअप कर लेगा इसको. और ठीक है, कोई बात नहीं.
वाइट रूम में गए, पर्सनली प्राइवेटली बात की, उसने मेरे को बोला प्राइवेट है, तो मैंने ब्लाइंड भी बंद कर दिया एक्सेट्रा। बोला हाँ बोल क्या बात है, बोला करके ये लेटर है और अब तो मुझे जानते हो इतने टाइम से, हाँ ठीक है, कूल। तो मैंने बोला क्या बात है, बात क्या है लेटर वगैरह पढ़ने से, बोला नहीं पहले आप लेटर पढ़ लो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है ओके फाइन, पढ़ा मैंने। तो उसने मुझे लीगली लेटर दिया कि आप मुझे जानते हो अमिताभ बच्चन, मंडे से ये नोटिस है, मंडे से आप मुझे, सॉरी उसका नाम था अमित बचपन, मंडे से आप मुझे अमिताभ बचपन बुलाओगे क्योंकि मैं ट्रांजिशन में जा रहा हूँ। तो आज से आप मुझे जिस तरीके से बोल रहा हूँ, यू रेफर टू मी एज ही, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू कैन रेफर टू मी एज शी। और ये मेरा नोटिस है, ये लीगल जो कुछ भी है, फाइन, ओवर दैट। ना यू मस्ट बी वंडरिंग करके ये मैंने भी स्टोरी तो स्टार्ट कर दी और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। कूल ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये माई बेस्ट परफॉर्मर, जो कि मैंने ऑलरेडी उसके लिए कह दिया कि ये वो कैलिबर का बंदा है जिसको गूगल माइक्रोसॉफ्ट दे प्रेफर टू पिक हिम अप। हिज लव फॉर हिज जॉब, जो परफॉर्मेंस देता है, अकेला बंदा, एंड द डिटेल ही नोज, अमेजिंग। अचानक से उसके लाइफ में क्या हो जाता है ऐसा, ठीक है, कि he's come, his performance has gone down, उसका परफॉर्मेंस लो हो गया है और ही इज डिस्टर्ब्ड एक्चुअली। बोलते ना करके डेली जो लाइफ में आ रहा है, ही कैन नॉट सेटल डाउन ओवर देयर, वो सेटल ही नहीं हो पा रहा है, वो तकलीफ में है बेचारा, एंड ही नीड्स हेल्प। तो एंडिंग में उसने जिस तरीके से किया, ही डिड अकॉर्डिंग, कुछ गलत नहीं किया उसने। उसने आके मेरे पैर के नीचे से तो जमीन खींच ली ऑलरेडी की, क्योंकि मेरा कभी एक्सपीरियंस था नहीं, ठीक है, ऐसे मामले में। तो फिर मैंने पूछा कि ओके ठीक है कोई बात नहीं, जो भी, बोला इतने टाइम से तू बताया कि नहीं, बोला इतने टाइम से तू नोटिस भी नहीं किया। बोला यार मैं क्या नोटिस कर रही है, तू परफॉर्म कर रहा है, बात खत्म, मैं तेरा मैनेजर, मेरे को परफॉर्मेंस मांगता है, उससे मेरा क्या लेना। बोला यही तो प्रॉब्लम है ना। बोला यार बाकी भी चीज नोटिस की है। तो मैंने उसे यार सॉरी यार माफ करना, चल मैं अब तेरी मदद करता हूँ, क्योंकि अ, भूल जा कि तू मेरा परफॉर्मर है, तू मेरा बेस्ट परफॉर्मर है, अ, तू मेरे अंडर काम करता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं डायरेक्टली मैं बोला ठीक है देख, ये मेरा नवा पहली बार मैं ये सिचुएशन में, मुझे टाइम दे, पढ़ने दे, जो कुछ भी है, क्या नहीं है, लीगल लॉज है, एंड फुल सपोर्ट है, फाइन। तो मैं गया मेरे एचआर में, एचआर वाले बोलते कि हाँ लास्ट टाइम हमारे पास एक ऐसा केस था कि एक आदमी आया, वो बोलता है करके आप मुझे एक हफ्ते बाद मुझे औरत रेफर करोगे, और ये मेरा औरत का नाम है, ओके। सो मेल टू फीमेल ट्रांजिशन, MTF। दूसरा होता है फीमेल टू मेल ट्रांजिशन, ये भी होता है, ठीक है, कूल, फाइन। तो ये मेल टू फीमेल ट्रांजिशन था। तो मैंने जाके पूछा मेरे एचआर डिपार्टमेंट से, और उन्होंने बोला हाँ 10 साल पहले हमारे पास एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ हुआ था, और ये एक जो हमारी एक डायरेक्टर है एचआर में, सिर्फ इससे इससे ही आता है, उसके बारे में और कुछ नहीं। ठीक है, इस बंदे ने तो यार लॉफुली लीगल नोटिस दे दिए, अभी कुछ ना कुछ मदद करना पड़ेगा एक्चुअली जो कुछ भी है। सो मैं उसको तसल्ली दिलाया अमित को कि कोई बात नहीं, मंडे से तू अमिता अमिता के तरह हम लोग रेफर करेंगे, एंड फुल सपोर्ट है, कोई बात नहीं, अलाउ मी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, फाइन। वीकेंड में आया, बहुत कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट पढ़ लिए, A to Z, कुछ अच्छा चीज मिला, कुछ बकवास चीज मिला, कुछ आउट ऑफ डेट चीज मिला, कुछ एकदम डराने वाले चीज मिले, कुछ फालतू चीज भी मिला जो कि लाइन है, मगर जो एक्चुअल कंटेंट चाहिए उस पर कुछ भी नहीं है रियल वर्ल्ड का, ठीक है। देन आई फाउंड गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि यूके के लॉ के हिसाब से, एंड फाइन इट वाज एवरीथिंग डन। मंडे को आए, मंडे को आया, एचआर से बात की, एंड ओपनली फ्रंट ऑफ एवरीवन डायरेक्टली कि सबको मैंने मीटिंग में बुला के बोल दिया करके, ओके आप लोग सब जानते हैं अमित को, हमारा टॉप परफॉर्मर है और आप सब काम करते हैं। बोलते हाँ ठीक है, बोला बोला ये मीटिंग का मतलब क्या है, बोला मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आज से ये है अमिता, और हम सब इसकी मदद करेंगे अमिता की, ताकि अमिता हमारे इसके न्यू ट्रांजिशन में सेटल हो जाए, और वी गो टू हेल्प हर आउट, ओके। और आपसे मैं ओपनली कह रहा हूँ कि अमित is not there. Amit has been transitioned to Amita, and she needs a help and support. Right? Everyone got the message. उसके बाद में
लोगों को थोड़ा टाइम लगा उसको ही से शी रेफर करने में एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस बीच में मैंने बिहेवियर देखा कि अमित अमिता और फ्रेंडली होते जा रही थी एंड अमिता ने बताया अ, कि उसका जो उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसने उससे वो बहुत खुश हुआ कि काफ़ी कुछ सपोर्ट किया एक्सेट्रा एंड बहुत सारा जो स्ट्रेस और डिप्रेशन चल रहा था दैट इज स्लोइंग डाउन। और अमिताभ बहुत खुश रहने लग गई उसके बाद में, और उसका परफॉर्मेंस में मैंने और भी देखा। और बोलते ना कि अचानक से एक फूल जो है जो मुरझा रहा था अचानक से एकदम खिल गया, और भी कि बहुत बड़ा एक बोझ था गॉन। और जो अमित था जो कि बोलते हैं ड्रेसिंग स्टाइल में खास नहीं था, मगर ये जो अमिता थी एकदम टिप टॉप ड्रेस, स्कर्ट बेल्ट लिपस्टिक मेकअप करके एब्सोल्युटली सी। तो ये जो फूल जो खिला, और ये इस खिलने से जो एडवांटेज इन द सेंस जो परफॉर्मेंस में और ज्यादा आई ना, दैट वाज अनइमेजिनेबल। एंड इन सब में एक चीज बात बताऊं कि मैंने कुछ नवा सीखा वहां पर, और कुछ जो मेरा परसेप्शन था वो बदल गया कि इंसान हम जो इंसान है, पहली बात तो हम काफी डरे हुए रहते हैं हर बात में। और क्यों डरे हुए रहते हैं कि सबसे पहले हमारे नजदीक कांटेक्ट कौन है? पेरेंट्स, माँ बाप, फैमिली। क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? फाइन। ये एक सबसे बड़ा इश्यू है एक्चुअली, कि क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। उस वजह से हम लोग अंदर ही अंदर बंद हो जाते हैं एकदम, और डिप्रेस्ड रहते हैं एकदम, और डरते हैं बाहर। बोलते हैं ना, अपने आप को खुद को हम लोग एक डार्क रूम के अंदर बांध के रख देते हैं एग्जैक्टली। तो वहां तो ना तो जो लव और जो सेक्स रहता है, या फिर जो कुछ भी उसके आगे, सब कुछ बंद हो जाता है, खत्म हो जाती है दुनिया, और एकदम डार्क कॉर्नर में चले जाता है। फिर बाद में दुनिया क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, कम्युनिटी क्या सोचेगी। और अगर ओपन भी अगर हो गई या हो गया, तो फिर है ना, ये जमाना कैसे ट्रीट करेगा, क्योंकि आजकल चैलेंजेस इतने सारे हैं किसी, तो ये बहुत कुछ से पीछे रह जाता है। देखिए, मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि आप जितना अपने आप को होल्ड करके रखेंगे, आप अपने आप को होल्ड करके रखें। आई रिस्पेक्ट दैट, ये बहुत हार्ड है। मैं नहीं समझ सकता हूँ आपकी जगह पर, बट यू हैव माई एम्पैथी, आई हैव एम्पैथी फॉर यू। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप जो डिप्रेशन इसमें किस वजह से जा रहे हो, एंड स्पीक आउट, कम आउट एंड टॉक टू समवन, आस्क फॉर हेल्प प्लीज। ये मैंने किया। इसके आगे कंक्लूजन क्या था स्टोरी का, कि वी सॉ परफॉर्मेंस ऑफ अमिता। एंड नाउ अमिता, व्हेन आई मूव्ड आउट, जब मैं वो कंपनी से बाहर गया था, अमिता वाज स्टिल ओवर देयर, और मेरे जाने पर रोने लग गई कि यू आर द बेस्ट पर्सन हु केम इन माय लाइफ एंड हेल्प मी सो मच। एक्चुअली किसी ने मुझे इतनी मदद नहीं की थी। ठीक है। और अमिता काफी सेटल हो गया। सेटल होने में थोड़ा चैलेंज आ गया, बट आई हैड टू सपोर्ट। हर बार लोगों को, हर मीटिंग में हजार लोगों को समझाना पड़ा कि शी, नॉट ही, शी, रेफर इट करेक्टली। और ये अमित नहीं है, अमिता है अब से। ठीक है। सो इट्स जस्ट मैटर, फाइन। तो ये तो एक मेरे वर्क के टाइम पे, आई वुड से कॉलीग होने के टाइम पे। अब आते हैं मेरी पर्सनल लाइफ पे। ठीक है। हम ठीक है, मैं ठहरा हैंडसम आदमी, इंडिया से आया, प्राउड इंडियन, देसी एक्चुअली। दुनिया बोलते हैं ना कि अ, सब जमीन बोलते हैं मेरी जूती पर, एक्चुअली वो एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आया, सेटल हुआ। फाइन, नौकरी मिली अच्छी खासी, अच्छा काम, नाइट लाइफ, पार्टीज, एवरीथिंग। जवानी के दिन, हर एक शाम को बाहर जाओ एक्सेट्रा। फाइन, एक्चुअली फ्रीडम दैट, आई एब्सोल्युटली लव दैट फ्रीडम। वो जॉइंट फैमिली में, यार, सिगरेट पीऊंगा नहीं पीऊँ, कोई देख लेगा पकड़ा जाएगा, बियर पीऊंगा नहीं, कोई देख लेगा पकड़ा जाएगा। यहाँ पे जो छूट मिली, दैट्स इट, सब कुछ कर डाला एक्चुअली। सी, प्लीज डोंट फॉलो माय एडवाइस। इट्स नाइस टू लिसन, लिसन, ओके। वो मैंने किया, मतलब कि आप भी मत करो, ठीक है? दैट्स नॉट व्हाट आई एम एडवाइजिंग, प्लीज। ओके। तो फिर बाद में देन आई मेट समवन स्पेशल एक्चुअली। ठीक है, एज यूजुअल मैं ठहरा बंदा एक्चुअली, गोरी लड़की, ब्लॉन्ड एक्सेट्रा, अट्रैक्शन, एक्सॉटन, वो एक्सोटिक चीज आई जाती है, इंसान है हम लोग। एंड वी मेट, फेल इन लव,
एंड वी मूव्ड इन, ओके, टुगेदर, स्पेशल थिंग एक्सेट्रा। एक दिन अचानक से वो दिन आया जबकि मैं मेरे घुटने पे गया, पूछा कि शादी करेगी? उसने रिटर्न में बोला हाँ। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? मतलब पूछ तो लिया, शादी करेगी हाँ या ना? हाँ तो कह दिया, शादी भी हो गई, फाइन, गुड, एवरीथिंग एज यूजुअल। नो, देसी देसी फैमिली में से मारवाड़ी यहाँ थे तो थोड़े थे, वो थोड़े यहाँ वहाँ हो गए थे, बट या वट एवर, मुझे शादी करना था। आई फेल इन लव एक्चुअली, आई मेट माई माई लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, यू सी। एंड देन यू नो लिव, करियर भी बढ़ते गया एक्सेट्रा। उसे भी, उसने मुझे हेल्प किया, मैंने उसे हेल्प किया, करियर काफ़ी कुछ परफेक्ट, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, इसी बहुत बढ़ते गया। देन वी हैव टू लवली किड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल, ओके, जो कि मेरे जैसे ही बोलता है, मेरा बॉय तो मेरे जैसा हैंडसम दिखता है और मेरी गर्ल है उसके जैसी दिखती है, एकदम क्यूट एक्सेट्रा। एंड फाइनली देन केम द डिवोर्स, एक्चुअली एक दिन ऐसे ही डिवोर्स। तो डिवोर्स आ गया, ठीक है। ठीक है यार, कोई बात नहीं। सी, वन थिंग लेट मी से कि जैसे हम लोग डिवोर्स बोलते हैं, ठीक है, दिमाग में एकदम सनसनी फैल जाती है, डिवोर्स 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 डिवोर्स। काम डाउन, डिवोर्स इसका मतलब नहीं कि कुछ गलत ही होता है, अच्छा भी हो सकता है, एंड देयर इज अ गुड रीजन आल्सो फॉर इट। आपको ब्रेन वॉश कर दिया है एक्चुअली, हर एक वर्ड बोल बोल के, ठीक है, कि आपको ऐसे फील करना है। ये वो वाला डिवोर्स नहीं था, दिस वाज अ अमिकेबल म्यूचुअल डिवोर्स, खुशी के लिए। रीजन क्या था डिवोर्स का कि काफी 2-3 साल से ऑब्जर्व किया था कि हम दूर दूर होते जा रहे हैं। बेड एक है, ठीक है, और दिन ब दिन वो जो लव शुरू हुआ था वो लव दिखाई नहीं दे रहा है, फाइन। फिर लव से फिर बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज रहता है एकदम, विच इज टू कीप एवरी वन रिक्वायरमेंट, सेक्स, और सेक्स भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट होते जा रहा है। दैट पैशन वो जो रहता है, जो फीलिंग, जो बोलते हैं ना दिल से एंजॉयमेंट रहता है, वो भी कुछ अलग अलग होते जा रहा है। मतलब हो रहा क्या है, ठीक है। हम एज यूजुअल मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, हाँ या ना बिलीव करने वाला हूँ, मिड ग्राउंड मुझे समझ में नहीं आता। ये ठहरी अंग्रेज, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर, सो मिड ग्राउंड समझ में आता। फाइन, वी केप्ट ऑन गोइंग ऑन। फिर एक दिन ऐसा आया कि शी ओपन डैमेज कि देख, बहुत टाइम से तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। बोला हाँ ठीक है, और मुझे मुझे पता है कि तू क्या बात करना चाहती है, मैं भी तेरे से बात करने टाइम नहीं मिला। तो उसने बोली कर लाइक बहुत हो गया काफी से, और मुझे नहीं लग रहा कि यू नो हम लोग वो जो थे आज है, एंड वी शुड मूव ऑन। बात तो सही कह रही है, थैंक्स, यू स्टार्टेड इट, क्योंकि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ उधर से बात करना। मेरे से पहले पूछी कि तेरा क्या रीजन, मैंने कहा मैंने नोटिस कर दिया कि वो जो हमारे में लव था वो नहीं है, और लव के बाद जो सेक्स था वो भी सेम नहीं रहा, एक्चुअली समथिंग्स चेंज्ड हो भैया। मे बी समय के साथ इंसान बदल जाता है, यू सी दैट प्रेफरेंस एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर एक्सेट्रा, जो कुछ भी है। तो उसने बोला होल्ड 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 योरसेल्फ, एक्चुअली होता है। ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा तेरा क्या रीजन है, पता है कि ये ना मैं बहुत डिफिकल्ट इंसान हूँ रहने के लिए। वो बोलता नहीं, ऐसा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, और पहली बात तो मुझे मेरे से बहुत अपॉलॉजी है, सॉरी वगैरह करनी है, आई अपोलोजाइज, पर तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और इस वजह से मैं डिवोर्स चाह रही हूँ। बोला करके माई प्रेफरेंसेस चेंज। मुझे कह रहे व्हाट डू यू मीन बाय योर प्रेफरेंसेस चेंज्ड? बोलता है कि बोली करके मुझे लड़कियां पसंद है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी लड़कियां पसंद है यार। बोला मजाक मत कर, एज यूजुअल। ओके फाइन। फिर क्या, फिर बोला सो मजाक नहीं तो व्हाट आई, बोला आई एम वेरी सीरियस कि आई केम टू नो दैट आई एम मोर इनटू वुमेन देन इनटू मेन। बोला ओके ठीक है। बोला आर यू श्योर अबाउट इट? बोला इसमें श्योर होने की क्या बात है यार। बोला सदा से मुझे शक था, दिमाग था। बोलता है मर क्या करे, फैमिली है, सोसाइटी क्या सोचेगी, माँ बाप क्या सोचेंगे, बहन भाई क्या सोचेंगे मेरे। तो कभी बोलता है अपने आप को ओपन नहीं किया। और ये बोलते करके ये एक ऐसी चीज है जो कि दिमाग में रह जाती है, और सदा वो जो बोलती है ना, जो प्रेफरेंस जो जो है इंसान अंदर से, जो प्रेफरेंस है, इट कीप्स ऑन कमिंग आउट एंड आउट, एंड इट इम्पैक्ट्स यू समवेयर। वो कहाँ ना तो कहाँ आपको इम्पैक्ट कर देता है। तो ये इसके दिमाग में चल रहा था इतने सालों तक, और उसने कभी मुझसे शेयर नहीं करी। एंड शी केम आउट, एंड रादर देन कि कुछ कहे या क्या नहीं, बोलो यार, ओके
ओके, इट ऑल मेक्स सेंस नाउ एक्चुअली कि एक बेड रहता है और अचानक से ना दूर, और बोलते ना करके जो औरतें और बोलते आदमी एकदम बोलते आदमी जैसा रहता है एक्चुअली, कि वो ठीक नहीं लगे प्रेफरेंस की आदमी है यार ये तो एक्सेट्रा ऑल दैट। लग रही अब नाउ इट ऑल मेक सेंस एंड इट एड्स अप। बट ठीक है, कोई बात नहीं है एक्चुअली, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से, बहुत बड़ी बात है यार ओपन अप होना ऐसा इस तरीके से एब्सोल्युटली कहना, तो रिस्पेक्ट दैट। और it's an amicable divorce, and today she found someone else, and उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो यूएस में रहती है, soon they'll be getting married actually। um, सही है। तो हाँ ठीक है, और मैं ठहरा just moved on, आज शीना कल वीना कल कोई टीना actually, that's me actually, so even I understand myself, nothing wrong with it, that's me। ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट चाहिए एक्सेट्रा, कोई टाइम पे था, आज बदल चुका है, there's a change into it, here it is। लव, पहली लड़की दिखी, आई लव हर, और उसकी जो दो फ्रेंड्स हैं, आई इवन लव देम टू एक्चुअली। सो समटाइम आई फील लाइक क्या हो रहा है, इट्स नथिंग रॉन्ग, कुछ नहीं हो रहा है, दैट्स मी एक्चुअली, दैट्स हु आई एम एक्चुअली, आई वुड से ना। और मेरे से और भी काफी है, इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। इट्स अ सेक्सुअल अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स यार, कम ऑन, यू नो oh, it is the beauty, actually, I would say. Whatever. Okay? That's what is there. But gender preference, okay, beautiful ladies. You ladies are absolutely beautiful, I would say. इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कुछ नहीं। और मैंने जैसे भी बोला 18 प्लस है, there's nothing wrong. This is what is there. Nothing wrong to talk about it. इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत टाइम से, जमाने से है, और इंसानों में नहीं, जानवरों में भी ये एक्चुअली प्रेफरेंस है। So I'm going back to what you want. Love, sex, and gender. So, love, sex, preference. Remember that. Gender, what gender you prefer to have sex. So now you see what is all added up. Okay. अब मैं आपको इंडिया लेके आता हूँ। um, मैं कॉलेज के टाइम पे, मैंने जूनियर कॉलेज के टाइम पे मैंने काम करना चालू कर दिया था, क्योंकि पैसा चाहिए था, क्योंकि कॉलेज की फीस भी नहीं भर पाते थे पेरेंट्स। और बाद में मेरे काफ़ी बहन भाई हैं, सो पॉपुलेशन के लिए there's a big contribution, हाई पॉपुलेशन के लिए मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू लेट यू नो। ठीक है। um, तो उस समय पे मैं काम करता था, तो एक बंदा हमारे साथ ही हैंग ऑन होता था, वी यूज्ड टू गो फॉर मूवीज एक्सेट्रा, काफ़ी लोगों का हम लोग ग्रुप था। तो सदा से वी न्यू इट कि ये भाई का, इसका प्रेफरेंस क्या है एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू, ही प्रेफर्ड अनदर बॉयज। ओके, नथिंग रॉन्ग विद इट। वो तो बोलते ना कि वो छुपाने की कोशिश करता था, मगर इतना भी नहीं छुपा पाता था वो। ठीक है, उसके ड्रेस करने से, उसके बात करने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से, उसके देखने के तरीके से, उसके दूसरे मेंस की तरफ देखने के तरीके से, उससे लड़कियों के लड़ने के तरीके से, यू सी, यू बाहर आ जाता है वो, बिकॉज दिस इज हु यू आर। कहने का मतलब है कि छुपाना, कितना भी आप छुपाने की कोशिश, दिस इज हु यू आर, इट विल कम आउट ऑटोमेटिकली, एंड यू वोंट इवन रियलाइज इट। ठीक है, एंड इट्स नथिंग रॉन्ग। सो ये इंडिया में रहता था, एंड ही आई थिंक टिल 5 6 years 7 years बैक वो मेरे साथ टच में भी था। ही मूव टू कनाडा, और ही मेट समवन ओवर देयर, और आज वो शादीशुदा है, एंड वो और उसका हस्बैंड, वो लड़का और उसका हस्बैंड, दे बोथ सेटल डाउन ओवर देयर एक्सेट्रा, एंड दे लिव हैप्पीली। यू सी, दे लिव एब्सोल्युटली हैप्पी। His parents, his families, he came out क्योंकि वो सी सोशल मीडिया पे आजकल तो लोग है ना बता देते, ओके दिस इज व्हाट वी डूइंग, ये ले सेल्फी, ये रहा मैं और ये रहा मेरा स्पाउस, व्हाटएवर एक्सेट्रा। सो इसमें there's a lot of way to communicate। Okay, so these are three different stories about love, sex and gender etc, what, how to say। देखिए, um, सी देखिए, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं एक्चुअली, रमन भाई, आप रमन की कलम भाई, आप ठीक कह रहे हैं, लव इज नॉट अबाउट सेक्स एक्चुअली, आई एग्री विद यू, एंड इफ दैट्स व्हाट आई स्लिप ऑफ द टंग से अगर हो गया, आई टेक इट बैक, आई अपोलोजाइज। ठीक है, लव इज लव, एब्सोल्युटली राइट। ओके, देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में लोग, ओ
जिसके पर जो द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू, जो जिस तरीके से जा रहा है, सिर्फ वही समझ सकता है कि वो किस समय से जा रहा है। ठीक है। एंड समय से जा रहा है। और रही बात, वी पीपल, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये दुनिया, या ये देश, या वॉट एवर कंट्री स्टेट, ये हम जैसे ही कोई सामने जाता है, वो क्या पहन के रखा है, क्या पहन के रखी है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में पहन के रखी है या राइट साइड में, नाक में पहन के रखी है, वो लड़का इयरिंग यहाँ डाल के रखा है या और ऊपर डाल के रखा है, उसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली जज कर देते हैं। और वो कानाफूसी चालू। और क्या जज करते हैं? उसके जेंडर और उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस पे। ओके। नाउ फाइन, एवरीवन नीड्स अ गॉसिप, गॉसिप तक ही रहो, डोंट गो टू bitching please. There's a huge difference between gossip and bitching. Okay. Bitching is wrong, sorry but it's wrong, because आप जिसके सामने कर रहे हो, वो किसी और के सामने भी कर सकता है, and that person will ultimately come to know, and what you're doing, you're making his life or her life more miserable. You don't have any rights. No one has the rights to make someone's life miserable based on their gender, on their preference of sex, etc. This is what I'm trying to highlight over here. ठीक है। एक और बात मैं बोलता हूँ कि यहाँ की मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, चलो ओके, कि oh my god, he I think he is gay actually. ओके ठीक है, वो है, मतलब वो फुटबॉल नहीं खेलता है, या वो टीम को नहीं सपोर्ट करता है, या फिर वो लाल रंग की जीन्स पहन के आता है या लाल रंग का शर्ट पहन के आता है, तो यू थिंक ही इज गे, और दैट गिव्स यू द राइट कि जाके आप उसकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ढूंढो, वो कहाँ पर गया, कौन से वेबसाइट पे जाता है, क्या करता है, उसका क्या डिटेल है, क्या नहीं, उसके दोस्त क्या है, उसके दोस्त क्या नहीं है, वो खाने में क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, वो डायलॉग्स क्या बोलता है। अरे, why are you so interested in someone else's life just to find out कि उसका एक्चुअल, उसका जेंडर क्या है और उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है? रियली, सीरियसली, आपके पास क्या और कोई काम धंधा है नहीं? हाउ इज दैट गोना प्रोग्रेस इन योर लाइफ? ठीक है। ये एक और मैंने देखा है कि एक्सपोज, हम लोग आज के एक्सपोज का बहुत ट्रेंड निकल गया ना, कि सामने वाले को एक्सपोज कर दो, अरे इसका तो ये जेंडर है, इसका तो ये प्रेफरेंस है। ठीक है, फाइन। okay? एक और है कि जस्ट एज यू कम टू नो, ये मेरे करंट कंपनी में एक मेल टू फीमेल है एक्चुअली, उसके दो बच्चे भी हैं, अभी मेरे ख्याल से दो बच्चे हैं। कैंटीन में खड़ी थी, मेरी अच्छी दोस्त है वो, कैंटीन में खड़ी थी। ये दो विजिटर्स आते हैं, कहाँ से, मुझे तो नेशनैलिटी छोड़ो, मैं नहीं बोलूंगा। दो लड़के आते हैं, खड़े रहते हैं, उसको ऐसा पॉइंट करके, देखिए ऐसा पॉइंट करके बोलते हैं, हा 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 हा, हंसते हैं कि देखो ये मेल टू फीमेल ट्रांजेक्शन है, और लड़कियों के कपड़े पहन के रखी है, और मिक्स मेकअप लिपस्टिक एक्सेट्रा लगा के रखी है, तो हा 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 हा, इट्स फनी एंटरटेनमेंट फॉर द डे। लाइक, यार, आप यार, माइंड योर ओन बिजनेस ना। आपके आंख भगवान ने दी है, इसका मतलब कि जो सामने दिखा है ना, उस पर हंस दो, आपकी खुद की जजमेंट पास कर दो, जो कुछ भी है। राइट? डू यू रियलाइज द वे यू हैव फीलिंग्स, यू हैव whatever you're passionate about, you have your own opinions, so does someone else. hmm? और आपका तो राइट राइट है, और आपका कहना, आपका नजरिया नजरिया है, बाकी का क्या है, दूसरे सामने वाले का क्या है, कोई कुछ राइट्स नहीं, कुछ नजरिया नहीं है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। सी, सो दिस इज व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट। सो ये जो लव, सेक्स और जेंडर है ना, ये आपने ये सुना होगा, और बहुत सारे अलग 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 वीडियो देखे रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। दैट्स नॉट व्हाट इट इज अबाउट। दिस इज व्हाट इज अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेप्शन, कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर इज लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, और बहुत सारे लोग हैं, और ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं मैं, जेनेरिक टर्म में। आई एम नॉट, दिस सेशन इज नॉट जस्ट फॉर इंडियंस ओनली।
or India only. This is a generic session. और कहने का मतलब क्या है कि देखिए, सामने वाले जो अंदर से जा रहा है ना, उसे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट, हैव सम एम्पैथी यार, ठीक है? और आपको कोई हक नहीं देता किसी की मजाक उड़ाने का। हर कोई इंसान पैदा होता है, ठीक है? वो किसी का बच्चा होता है, ठीक है? माँ-बाप के लिए बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, ठीक है? वो लोग तो प्रार्थना यही करते हैं कि हे भगवान हमें एक हट्टा-कट्टा बच्चा दे दे। कोई माँ-बाप या कोई ऐसा प्रे नहीं करता, हे भगवान हमें एक हट्टा-कट्टा बच्चा दे दे और उसका ये सेक्सुअल प्रेफ़रेंस दे। क्या कोई ऐसा माँगता है किसी के साथ? ठीक है? दे डोंट डू एनीथिंग जजमेंट, दे जस्ट वांट अ चाइल्ड एंड दे एब्सोल्यूटली लव। हर एक माँ-बाप अपने बच्चे को बोलते हैं ना, टेयरली लव करते हैं, ठीक है? बाद में वो इंसान, वो बच्चा जब वो बड़ा होता है, जो कुछ भी इसकी प्रेफ़रेंस, दैट इज़ ऑल व्हाटएवर बायोलॉजी एक्सेट्रा, दैट्स अप टू हिम। आपको कोई हक नहीं बनता है, आपको कोई हक नहीं बनता है कि किसी का मज़ाक उड़ाए या उसे सप्रेस करे बेस्ड ऑन their जेंडर और their सेक्स प्रेफ़रेंस, ओके? दिस इज़ नॉट द टुडेज़ सेशन। प्लीज़, मैंने ऑलरेडी आपसे रिक्वेस्ट कर दी है, पोलाइट रिक्वेस्ट, कि आप आएँ, जॉइन कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एडमिन नहीं हूँ तो आई डोंट हैव द राइट्स टू गेट यू इन, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं नज़रिया का, बट प्लीज़, प्लीज़ कीप इट टू द पॉइंट, इसको कॉन्टेक्स्ट में रखिए ताकि लॉट्स ऑफ अदर पीपल अंडरस्टैंड अबाउट इट, ओके? Excuse me for a second, please. Girja ji or Rachna ji, please can I request if you can, yeah, thank you for sharing that. I would love to take any questions अगर आपके कुछ सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं या या और भी आपके कुछ शेयर करना चाहते हैं, एनीथिंग, दैट्स टोटली फाइन। ये सेशन, आज का सेशन देखिए, ये सबके लिए नहीं है, रिस्पेक्ट दैट, ठीक है? सबके लिए नहीं, इन द सेंस देयर आर पीपल हू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी रिस्पेक्ट दैट टू। बट जिन्हें बात करना है और जिन्हें मदद चाहिए, प्लीज टॉक अबाउट इट, आई एम देयर फॉर यू, I'll help you, I'll guide you whichever the way I can। श्योर रमन जी, आ जाइए, ज्वाइन कीजिए। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा पानी पीना, तो गला सूख रहा है। देखिए, ओके, हम थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं, देखते हैं कमेंट्स, चैट रूम में क्या हो रहा है। मेट्रोसेक्सुअल, एब्सोल्युटली राइट रचना, एब्सोल्युटली। मेट्रोसेक्सुअल, आपको पता है कि क्या होता है, या आपको anyone doesn't know, please type in chat. If you don't want to come online, that's totally fine। ये मेट्रोसेक्सुअल भी बहुत कुछ दिन ब दिन चल रहा है। और एक और बात, इट्स एक कोई डरने वाली बात नहीं है यार, इट इज कोई बीमारी वगैरह नहीं है एक्सेट्रा, इट इज जस्ट पीपल्स इंडिविजुअल, जो अंदर की जो हु डे आओ, जो खुशी मिलती है ना जिससे एक्सप्रेस करने से, दैट्स व्हाट इज अबाउट, ठीक है? ये कोई बीमारी बीमारी नहीं है एक्सेट्रा, जो कहता है ना कि किसी की मानसिकता और बीमारी है, सॉर्ट योरसेल्फ आउट, जाके थोड़ा पढ़ लिख लो, okay? um, फाइन। एक और, हाँ चलो, एक और आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में, कि देखिए, थोड़ा जेंडर पे ही फोकस करते हैं, ठीक है? देखिए, जेंडर पे मैं पढ़ रहा था, अ, और जेंडर पे जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट क्वालिफाइड बंदा माना जाता है, ठीक है? और जहाँ तक मैंने उसके मुँह से सुना है कि देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट जेंडर्स। तो यार ये क्या हुआ? तो जो होस्ट था, उसी ने उसको पूछा, एक जेंडर उठाया उसके लिस्ट में से, 100 के जो लिस्ट में थे, इसका मतलब क्या होता है? तो जो एक्सपर्ट था वही बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। तो फिर बनाया किसने यार?
तो व्हाई यू कंफ्यूजिंग? इसीलिए ना, मेरा भी देखिए, मेरा भी यही सोच है कि वी रिकॉग्नाइज इट, प्रेफरेंसेस और जेंडर के जो है, जो कुछ भी है, फाइन, रिस्पेक्ट दैट, पर इतना कंफ्यूज मत करो ना यार, यू मेल फीमेल एंड अदर्स, मेरे हिसाब से ठीक है ना। आपको, हम लोग कुछ ये तो नहीं कर रहे हैं या ना खुद बोलते करिए क्या, नो दैट विल बी बायस्ड एक्चुअली फ्रॉम माय सेल्फ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यस, इट्स रिकॉग्नाइज्ड, यू सी, दैट आई थिंक एंड अवेयरनेस इज देयर, फाइन। उसके बाद में और करोगे, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए यार। यहाँ पर आजकल मेल फीमेल उसके आगे भी बढ़ने के लिए काफी दुनिया में लोगों को स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, यू सी, सो हेल्प अस आउट, सो वी कैन हेल्प यू, या बोथ द साइड्स, कूल। रमन सर और रमन भाई, हेलो। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं भाई? जय श्री राम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बड़ा जय श्री राम। बहुत रेलेवेंट टॉपिक था आज। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। पर मुझे सॉरी, मैं अभी सो रहा था, तो इस टाइम पे लाइट जलाना ठीक नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू शो यू माय फेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड लेट यू लिसन टू माय वॉइस। तो दोस्त, मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा है, थोड़ी सी क्यूरोसिटी है। हाँ जी, बोलिए। उसमें पहली क्यूरियोसिटी ये है कि एक 4 साल की उम्र में, जब मुझे सेक्स के बारे में मालूम भी नहीं था, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। जी। और 35 साल की उम्र तक, 35 साल का जब मैं हुआ, तो मैं उसे ढूंढने के लिए गया। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्स का कोई नहीं नहीं, कहीं पे ये भी लेना देना। नहीं नहीं, ये टोटल वो, क्या बोलते हैं वो, अम, क्या वर्ड यूज करूं, ये वो हार्डकोर लव है, जो कि बोलते हैं ना, बचपन का जो फर्स्ट लव टाइप का होता है। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि बार बार होता है ये सब। हाँ हाँ, मुझे तो हर बार होता है, सीरियसली। पर कहीं ना कहीं पे आज भी जब मैं उससे मिला, I was around 35 years of age when I met her last time. When I met her, मुझे उसमें वो 4 साल वाली ही वो, जो प्यार था वो दिखा। उसके 2 बच्चे थे, उनके साथ बातें की, उनके साथ you sound to be a love guru at this point in time. I would थैंक appreciate यू। if you continue, if you continue doing this. वरुण जो है, मेरी मेरी जान है वो, उनके लिए anything for him. और आप आज शो में, आई हैव नेवर सीन यू ऑन दिस शो अर्लियर। नाउ if I'm watching you, you know you deserve that compliment, that you seem to be a love guru at this point in time. रात के 11 बजे, 12 बजे, अगर आप हिंदुस्तान के उठा लड़कों को, लिया। लड़कियों गॉड ब्लेस यू, खुश रहो और लगे रहो, और अच्छा लग थैंक रहा यू। है। पर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जो मेरा क्वेश्चन था, भाई पता है क्या, कि मुझे वो अब भी ना वैसी ही लगी, जब मैं आज से लगभग 8 9 साल, 10 साल पहले मिला था, तो मुझे वो 4 साल वाली ही लगी। मुझे उसमें कुछ दिखा ही नहीं, और उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उसके बावजूद उसमें मुझे वो 4 साल की जो थी, जब हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, आई मेट हर इन माय स्कूल, और तब से अब तक उसमें कुछ चेंज लगा ही नहीं मुझे, और मैं उसे देखते ही पहचान गया। व्हाट वाज दैट? रमन जी, ये दिस इज, बोलते हैं ना कि जो पहली बार जो देखते हैं और जो महसूस होता है, वो जो स्पेशल एकदम महसूस होता है, ठीक है, एंड जो स्पेशल महसूस होता है वो रह जाता है अंदर, इट गेट्स स्टोर्ड एज अ मेमोरी एंड रिमेंबर। ये हमारा दिमाग, और बोलते हैं ना, हमारा दिल बहुत स्मार्ट है एक्चुअली, इट रिमेंबर्स, तो ये वो वाली फीलिंग है एक्चुअली, एंड दिस इज ऑलमोस्ट, ये फर्स्ट लव वाली फीलिंग है एक्चुअली, जैसे कि विच डजंट मैटर उसके आगे, कि एक बार आप बोलते हैं कि एक दिल आ गया यार, दैट्स इट, बात में फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कि नहीं नहीं भाई, 4 साल में मुझे कैसे दिलाता होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा, वही वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी जो फीलिंग, जो इमोशंस है ना, दैट मस्ट हैव गॉट स्टोर्ड एक्चुअली समवेयर, यू सी, एज अ गुड मेमोरी, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम कैसे क्या बोलते हैं कि कुछ बचपन में हमने कुछ और भी काफी चीज के रहेंगे, जैसे कि रिश्तेदार वगैरह से मिलते हैं एक्सेट्रा, वो गुड मेमोरी रहती है ना, वो यादें, हम्म, ठीक है? तो सही। जो फीलिंग रहती है, दिस इज वन ऑफ दैट थिंग एक्चुअली, आई वुड से। हम्म। मेरे पास और बेस्ट मैं वर्ड्स एक्सप्रेस करने के लिए, बट दिस इज व्हाट आई वुड से।
अच्छा, फिर उसके बाद 10 साल की उम्र में ऐसा हुआ, फिर दोबारा, फिर 12 साल की उम्र में, फिर 15 साल की उम्र में, फिर 20 साल की उम्र में, फिर 30 साल की उम्र में, शादी होने के बाद फिर 2-3 बार और हुआ, ऐसा क्या है? अट्रैक्शन, ये वो अट्रैक्शन है। एंड जहाँ पे होता रहेगा। ये वो सेक्सुअल वाला अट्रैक्शन नहीं है, ये वो जेन्यून बोलते हैं ना कि एकदम, क्या बोलते हैं ना, स्पेशल फीलिंग वाला अट्रैक्शन है एक्चुअली। सही है। दैट वाज माय क्वेश्चन। एंड लव गुरु जी, लगे रहो, आते रहा करो, और मैं और लोगों को सच में बताया करो होता क्या है एक्चुअली। हम लोग ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं एक नॉर्मल लाइफ में ना। इंसान बहुत कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा रिश्ता क्या है। हम देखिए। लोग अट्रैक्शन को प्यार मान लेते हैं, प्यार को अट्रैक्शन मान लेते हैं, अट्रैक्शन के हम्म, साथ साथ जुड़े जुड़े दोस्ती मान लेते हैं, दोस्ती के ऊपर जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि वो प्यार होता है। हम्म, बहुत सारी चीजें, लाइफ इज जस्ट लाइक दैट। तो हम्म, आते रहो और बताते रहो। डेफिनेटली। जी, थैंक यू। थैंक यू um, सो मच, ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हम, आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। मैं जरा क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जी, बिल्कुल। ओके, जूडी दामले जी का एक क्वेश्चन फ्लैश हुआ है, इसके पहले भी किसी और का क्वेश्चन फ्लैश हुआ था। मैं जूडी दामले जी का क्वेश्चन लेता हूँ। कॉमन मैन, a question please. What is difference between sex and making love? Is there a difference or it is same? My take on it, there is a big difference. Would you like to share some light? You already answered it, Judy. Yes, there is a big difference. देखिए, sex and making love. Making love is something where you're making love with your special person. Okay? Yes, it is sexual thing. Actually, of course, it is there. But that making love ना, जबकि आप बोलते हैं ना कोई जो स्पेशल मिल जाता है, ठीक है, आपका पार्टनर होता है, और एकदम बोलते हैं कि जिसमें आप प्यार से एकदम you give everything out. That's what is making love, in my opinion. Sex, यार वो तो यार उसके मैं क्या बताऊं उसको। सेक्स इज सेक्स एक्चुअली। वो बोलते हैं जिसकी भूख लगी तो हमने खाना खा लिया, Let me एक्सेट्रा। let me answer it. Let me answer it, brother. Yes, what I will डेफिनेटली। say, sex might be a part of making love, but love is a wide word. शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है प्यार। प्यार के अंदर सेक्स है, ठीक है, समझ में आता है, आया बीच में हो गया। जैसे अ, मान लीजिए आप 100 तरह के खाने रखे हैं आपके लिए, किसी ने बहुत प्यार से बनाए हैं। एक पेट भरने के लिए खाना, और एक खाने के बाद सोना, जीना, हंसना, रोना is called love. But if you talk about sex, it's a part of love. That's it. That's what I would say. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। देखिए, और मैं थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाता हूँ उसको, थोड़ा एडवांस वर्जन एक्सप्लेन कर देता हूँ या शेयर कर देता हूँ, नॉट लाइक एक्सप्लेनिंग एक्चुअली। आप प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट कि देखिए, मैंने पहले ही 18 एंड ओवर कह दिया। अगर आपके बाजू में अगर कोई अंडर 18 है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। Sorry, sorry, sorry. My wife thinks she's just 16. Well, do I need to ask her to go away? She हाँ, thinks from last, around 28 years, she thinks that she's around 16. She's not growing older than that. What should I एंड do? एंड रमन जी, आप करेक्ट भी मत करिए ना, तो आप बेड की जगह पर सोफा पे सोओगे, सोच लो। नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पता है क्या, वो मुझे ऑलरेडी छोड़ के भाग गई है दूसरे कमरे नाइस, ठीक है। में। देखिए, एक और बताता हूँ। ये जुड़ी जी की क्वेश्चन में, ये थोड़ा एडवांस्ड है और ओपिनियन है। ओके, आई एम जस्ट कीपिंग इट ओपिनियन। ओपिनियन मतलब जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, या जरूरी ये भी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। इट मैटर्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। देखिए, सेक्स और मेकिंग लव, व्हेन यू मेक लव, जैसे कि मैंने बताया कि विद समवन whom you are in absolutely
in love, that special person, of course, you're having sex. Yeah, it is a thing. But that special, बोलता ना करिए, स्पेशल चीज आ जाती जहाँ पर यो एक्स्ट्रा कैरीड ऑन एंड एवरीथिंग, सब कुछ निछावर एक्सेट्रा बेड के अंदर हो जाता है, ठीक है, वट एवर वेर एवर, ठीक है, नाउ दैट इज। और एक और है कि सेक्स है कि ओके फाइन, देर आर friends with benefits, etc. That's just sex. Sorry, but it's a requirement or whatever, it's a hunger, etc. That's sex actually. So that is my opinion on it. Okay, thank you. There was another question actually, a good, very good question. I'll see if I can find in the chat. Judy, I hope actually your question was answered. Ashnu Velji, before lot of older men liked loved younger women. Now these days, older women like love younger men. Parameter society changing thoughts. Hmm. अश्नूर जी, ये आज और कल नहीं है, ये समय सब समय से था, मैन और वुमेन, और यंग और ओल्ड, ये पहले भी था, आज भी है, आगे चल के भी रहेगा। आज क्या है कि आज क्या है कि देयर आर वर्ड्स, सी नाउ आई डोंट मीन इन अ डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट इज आई हैव हर्ड ऑन इट, ठीक है, ओके। आज के रेट में क्या है कि देखिए क्या हो रहा है कि कल कल की बात है, परसों की बात है, किसी से तो हम लोग, मैं बात कर रहा था, आई कांट रिमेंबर द पर्सनस नेम, और हम लोग बात कर रहे थे कि शायद डिम्पल कपाड़िया का मैंने पिक्चर देखा था कि हम कि कि ये बंदी देख, इतनी इसकी उम्र हो चुकी है मगर आज भी अच्छी दिखती है। तो फिर सामने वाला ने पूछा कि यार इनको चाहिए क्या, मतलब रिटायर क्यों नहीं हो जाते हैं? बोलता है देखिए कि ये ग्लैमर वर्ल्ड है, इसमें ग्लैमर वर्ल्ड में इनको एडिक्टेड टू इट। मगर एक बात है कि पकड़े जाते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, ये गला जो यहाँ का एरिया है, गला ही हो गया ना ये, और फिर ये जो आपका हाथ का एरिया है, ये कितनी भी फेस की सर्जरी करा रहा हो, दिस गिव्स अप द एज। बट द इशू इज दैट कि आप अगर देखोगे, समझो मडोना को ले लो, फाइन, इफ यू पुट मडोना टुडे ब्लॉन्ड एक्चुअली, और किसी को साइड में ले लो यंग बंदी को, माय प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स, बट फर्स्ट विल बी मडोना। व्हाई? कि उम्र है बट शी स्टिल फिट दैट अट्रैक्टिव, यू सी, इट डजंट मैटर, एज वहां पर नहीं है, इज दैट अट्रैक्शन, ओके। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ये दिन पे दिन नॉर्म नहीं, दिन पे दिन और ओपन होते जा रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से और विजिबल होते जा रहा है। ये ऑलरेडी पहले से भी था, ओके, था, अब भी है, और आगे चल के भी रहेगा। देयर आर लॉट ऑफ क्या बताऊं मैं कि मैंने शादी भी देखी है एक्चुअली इंडिया में कि जहां पर वो लेडी जो ब्राइड जो है, शी इज अ बिट ओल्डर देन द ग्रूम एक्चुअली। इट्स नथिंग रॉन्ग और एनीथिंग इन इट, जहां तक ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, और there's something dodgy about it, yeah. Okay, but when it comes to attraction, sexual preference, etc., hmm, as long as it is all legal stuff, yeah, just keep it over there. Uh, Fine, actually. In parameter society, fine, yeah, actually. Cool, yeah. Gaurav Gupta, there are three types of sexes stroke genders. Equal, one. Okay, first one is male, second one is female, third one is others. This is what I've actually kept it to, गौरव। ये जो अदर्स बोल के मैंने इस सेशन को छोटा कर दिया है, और मैंने अपर अपर लेवल पे एकदम स्किम कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अगर एक एक चीज में जाएंगे ना, ये एक एक चीज में एक सेशन बन जाएगा और डीप में जाएगा, फिर वो स्टैटिस्टिक आ जाएंगे और वो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा अड़ंगा, और जो मेन चीज जो शेयर करना है वो शेयर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दैट विल गेट डाइल्यूटेड। इसलिए मैंने उसको स्किम कर दिया और एकदम ऊपर रखा है, ठीक है भाई। और ये मैंने किया है एक्चुअली जस्ट फॉर दिस सेशन। आप और कहां पर पढ़ोगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लीज गो हेड एक्चुअली, और हम लोग को भी एडुकेट कर दो बाद में थोड़ा। बिल्कुल, cool. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मतलब एक हम लोग पानी में जब तैर रहे होते हैं तो Mhm. ऊपर ऊपर ही तैरा जा सकता है। अगर हम डाइविंग पे चले जाएंगे तो ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, उतना ज्यादा जाना नहीं है अभी फिलहाल। जैसे कि Mhm. हमारे लव गुरु जी कह रहे हैं, मैं सब ऑडियंस को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं।
हम लोगों को तैर के निकल जाना है और समझ लेना है कि बात को क्या है। बीच बीच में एक छोटी सी डुबकी ले लेंगे, कहीं भी, किसी भी तरफ, अदर्स पे भी ले लेंगे, मेन पे भी ले लेंगे और फीमेल पे भी ले लेंगे, सब पे ले लेंगे, छोटी सी डुबकी लें। और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा और बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये मेरा एक एब्सोल्युटली, छोटा सा कहना एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, ये वो क्वेश्चन था अभी जो फ्लैश हुआ है प्रमोद माइलर जी का। आई अपोलोजाइज अगर मैंने आपका सरनेम करेक्टली नहीं प्रोनाउंस किया है। है। प्रमोद माइलर, यस। माइलर, हाँ जी। What's your take on gender fluidity and the dift words? I think there are about 72 plus words they prefer. लास्ट मैंने देखे थे, मैंने उससे भी ज्यादा देखे थे प्रमोद जी। और आप भी ठीक है गैस कर रहे हैं। और देखिए, उतने सारे में ना, मैं अगर बोलता, मैं जब तक अगर मैं पढ़ूं और मैं समझूं ना, मैं वो शुरू के भूल जाऊंगा। इसीलिए मैंने इसको अदर्स कर दिया है, ठीक है। और आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। ऑल्सो बायोलॉजिकल मेल, मतलब आपका जेंडर जब आप पैदा हुए थे तब मेल था। हु हैव ट्रांजिशनड इनटू फीमेल, मतलब आपने ट्रांजिशन, मेल टू फीमेल ट्रांजिशन हुआ। और फिर आप पार्टिसिपेट करते हैं वुमेन स्पोर्ट में, बिकॉज नाउ योर जेंडर आफ्टर द ट्रांजिशन इज कंसिडर्ड एज फीमेल। ओके। एंड देखिए, ये देर इज अ लॉट ऑफ प्रमोद जी, ये जो देखिए, एक एक जो पैदाइशी जिस जेंडर से पैदाइश हुए, स्पेशली मेल्स, हम मेल्स में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है, बिकॉज दैट इज हाउ आवर बॉडी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली, जेनेटिकली और वॉट एवर स्ट्रक्चरली, बायोलॉजी हमारी वैसी की वैसी है, ठीक है। तो मुझे पता है आप कहाँ पर हिंट कर रहे हैं, और ये अनफेयर सिस्टम पे हिंट कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और जो कुछ भी है वो टोटल मेल की है ट्रांजिशन के बाद में, और आप फीमेल कंपटीशन में जाते हैं, वहां पर वो रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बात तोड़ते जाते रहते हैं। आई पर्सनली थिंक देखिए, ये मेरा ओपिनियन है और मेरा सोचना है, ये थोड़ा अनफेयर है। क्योंकि ये फेयर कैसे नहीं है, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर जो स्पोर्ट्स हैं जहां पर ज्यादा ताकत लगे, ऑफ कोर्स यार मेंस जीत जाएंगे। सो इट इज नॉट फेयर टू a woman who is who is born with the gender women, and she has that particular biology which is not same as a man। और ये स्पोर्ट्स में जहां पर ताकत लगती है ज्यादा करके, ठीक है, आई एग्री विथ यू ऑन दैट, ठीक है, ये पार्ट में। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। तो मेरा मगर इसका एक सोल्यूशन भी है कि हर चीज का हम लोग सवाल और जवाब कर रहे हैं, और हर सेशन में ऐसा ही होता है, पर इसका सोल्यूशन भी हम लोग सोचना चाहिए इसके बारे में। ये जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग कैसे स्पोर्ट्स बनते हैं, मेंस हॉकी, फीमेल्स हॉकी, फिर बाद में एक और आता है, क्या होता है वो हैंडीकैप, माफ कीजिए मुझे उसका पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, अपोलोजाइज, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा करके उसे क्या कहते हैं जो कि चैलेंज लोगों के लिए रहता है, एक कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी रहती है ना, जैसे कि, तो उस तरीके की कैटेगरी कैटेगरी बना देनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक दैट कुड बी अ सोल्यूशन टू इट। आई डोंट नो, बट एक रास्ता है, ठीक है। ये मेरा सोचना है इसके पर, कि उस तरीके से क्या होगा कि जो मेल है, फीमेल है, एक्सेट्रा एंड अदर्स, इसलिए मैंने कह दिया था। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट ना, वहां पर जैसे कि जो मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, जहां कुछ भी डिपेंड अपॉन दैट एक्चुअली, उस हिसाब से डिफरेंशियली एबल्ड। थैंक यू गिरिजा जी, दैट वाज द नेम। ओके, मैं सही नाम लेना चाहता, मुझे याद नहीं आ रहा था। थैंक यू। बट दिस इज व्हाट आई मीन, पैरा ओलंपिक्स, एब्सोल्युटली राइट प्रमोद माइलर, you are a star, and you too Gaurav Gupta, thank you, perfect names। ये मेरा सोचना है प्रमोद जी। आई होप सो, I've answered your question, I think so, and believe that's what your question. If it is not, please ask me again and I'll try to share my thoughts on it। We got next one, Jativad Sanatani। Okay, platonic love exists, but not necessarily you will meet your soulmate in this life, and you should not even strive for that and carry on। God is the supreme and the most precious mate of your soul। ये सवाल नहीं है, ये तो स्टेटमेंट या कमेंट हो गया। थैंक यू, कोई बात नहीं, चलो।
I don't know from where is the statement taken, but it's a good one actually. Thank you. मेरा एक छोटा सा सवाल है लव गुरु आपसे। हाँ जी, बोलिए, बोलिए रहमान जी। जी, इफ यू अलाउ मी टू आस्क द क्वेश्चन, श्योर आपके श्योर, साथ पैनल डेफिनेटली। पे हूँ, इट्स माय ऑनर हाँ हाँ, कि मैं आपके साथ पैनल पे हूँ। यू आर टॉकिंग सो, जी जी, यू तो नो इट्स मेकिंग मी फील, कि रात बाकी बात बाकी, और रात भर जो होना है होने दो, है। So I'm feeling delighted, I'm feeling honored to be a part of your panel. the What honor I is mine. think, no, no, it's not your honor, it's my honor. Thank you so much. मेरी मेरी एक छोटा सा क्वेश्चन है। पता है क्या है, हाँ बैठे जी। हैं बात कर रहे हैं, चलो मतलब बातें करते करते एक क्वेश्चन है। मैं आज तक नहीं सकता, एक रिलायबल आंसर मुझे आज तक नहीं मिला। ये मैंने बहुतों से पूछा, व्हाट इज लव, प्यार क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है, और सिंपल इसका सवाल जवाब है है इसका जवाब है। देखिए, ग्रेट। मैंने स्टार्ट भी शुरू से किया था। व्हाट इज लव एक्चुअली? हम लव बहुत सारी चीज है एक्चुअली। यू लव योर पेरेंट्स, यू लव योर फैमिली, यू लव समथिंग व्हाट यू डू बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट। यू लव समवन बिकॉज you feel that special for that person. That's what is love, that feeling for it. ठीक है, जिसके लिए बोलते हैं ना, जहाँ पर ये सभी भी किताबी बातें या फिल्मों वाली बातें होंगी, पर एक्चुअली होता है कि आप खड़े रहते दरवाजे पे कि कब वो स्पेशल पर्सन आएगा, कब दिखेगा, कब उसकी बात सुनेंगे, मैसेज क्यों नहीं आया आज के डेट में, इसी वो खाना खाने भूल जाते हैं। जो इंसान जो बोलते हैं कि कभी सूट वगैरह नहीं पहनता, वो अचानक से एकदम सूट और टाई और कॉलर भी एकदम स्ट्रेट करना चालू होता है। लड़कियां जो कि कभी नेल पॉलिश नहीं लगाती थी, वो नेल पॉलिश लगाना चालू करती हैं। या फिर वो इयररिंग्स पहनती नहीं थी, अचानक से वो इयररिंग्स पहनना, वो एक्स्ट्रा बनना टनना है इसी। ओके। और कुछ लोग कुछ अतरंगी तरीके से भी होता है उनको, जैसे कि उनकी बोलते हैं ना, वो थोड़े थोड़े डरे हुए दिखते हैं एक्चुअली। एक्चुअली दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। बट द क्रक्स एक्चुअली इसमें पीछे के कि उनकी उनकी फीलिंग्स जो इतना है हो रही है ना अंदर से, दे कान मैनेज इट, आई वुड से दे कान हैंडल इट। सो दैट इज व्हाट इज, आई वुड से, is our love, that special feeling. Uh, Unfortunately, I think I'm हम्म। not the right person actually to be an example for that, क्योंकि मुझे तो हर बार फर्स्ट लव होते रहता है। इसके बाद वो सारा का सारा सब फर्स्ट सही है। लव ही होता है। हाँ, फर्स्ट लव के मुझे सिवा और कोई मुझे होता है? मुझे ऐसा लगता है, गिरजा जी का मैं वो नीचे देख रहा हूँ उनका, जो लिखा हुआ है, किसी के लिए कुछ प्यार है, किसी के लिए कुछ प्यार है। गिरजा जी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है गिरजा जी की बातें बड़ी अच्छी होती हैं। गिरजा जी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है एक दो बार। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो सांसें हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो वो प्यार है। हम किसी के नाम की सांस लेते हैं तो प्यार है। हम लोग मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत ऐसे होती है, जब एक इंसान किसी से प्यार करता है, और वो प्यार करने के बाद उससे उम्मीद करता है कि उससे सेक्स हो जाए, और सेक्स के बाद में भी अगर वो उससे दोबारा मिलने की कोशिश करता है, उसको प्यार समझता हूँ। हम्म, मुझे लगता है कि वो उसे बार बार मिलना चाहता है। और अगर किसी के साथ आपके सेक्स के बाद भी प्यार खत्म नहीं होता ना, हम्म, तो उसे कोई प्यार है, उसे हम्म। कोई प्यार टोटली एग्री विथ यू, एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। देखिए, मैं ये जो आप कह रहे थे ना, ये एग्जैक्टली ये सेम, वो जो स्पेशल रहता है ना, जो बोलते हैं स्पेशल फील होता है, एकदम 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 है। स्पेशल फील होता है। यू वांट टू मीट, जाने नहीं, यू कांट लेट गो, यू जस्ट वांट टू स्टे। जाना नहीं चाहिए, वो लाइफ से जाना नहीं चाहिए बस। और आप उस समय को बोलते हैं रोक के रखना चाहते हैं एक्चुअली, इसी। जी। अब एक और रमन जी, आपसे आपसे सवाल है एक्चुअली। जी। गोपियां और कृष्ण भगवान, जी। तो was that what, आप मुझे समझाइए। I'm sure about it, जी। all these ladies were in love with him। जी। ये उसके बोलते हैं ना, उसकी भक्त है उसमें इतनी दीवानी, दीवानी will be the right word, I would say। दीवानी हो जाती जी है ना बिल्कुल इंसान। दीवानी, मतलब प्रेम दीवानी बोलो, या Absolutely, गोपियां बोलते ही समझ में आता है। absolutely। So you see now, जी। that is also that special feeling, जी। कि कहाँ है हमारा कृष्णा। लकी मैन और लकी भगवान जी। एक्चुअली, आई वुड से।
बिल्कुल। देखिए, 4 दिन के बाद आप इसको कंटिन्यू करें इस शो को, हाँ जी। और सब लोग पूछेंगे कि कहाँ है हमारा लव गुरु। सर जी नहीं, 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 काय का। हाँ, आप मुझे नहीं, आई हैव नो आइडिया वेयर यू आर सिटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेबी यू आर इन मेलबोर्न, मेबी यू आर इन अमेरिका, मेबी यू आर इन न्यूजीलैंड, और मेबी इन इंडिया। हो सकता है कि आप दिल्ली के साकेत में कहीं बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। पर मैं हुँ, आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आप कंटिन्यू डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ, you have awakened, you know uh, सोई हुई एक इच्छा आप लोगों ने जगाई है अभी, आपने जगाई है। लगे रहो तो आपको, अब थोड़े दिन बाद ना आपको गोपियां ढूंढेंगी मेरे जैसी गोपी, मतलब आई हैव नो टेस्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ, नो, मेरा ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, पर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अपने दिल की बात करने के लिए इंसान चाहिए होता है। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान हमारे, वो जो गोपियां 1008 थी या 108 थी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, पर वो मुझे जो भी। सब थी, जी, वो जो सब थी, वो फिजिकली कहीं ऐसा नहीं था कि वो कृष्ण भगवान से अटैच, वो दे अ, जी, जी, जैसे आप कहिए। आज हम मैंने बोला ना कि आप कहाँ बैठे हो मुझे मालूम नहीं है। हुँ, आपके साथ अगर 1000 लोग जुड़े हुए हैं, अगर आज आपके साथ 1000 लोग जुड़ते हैं, हुँ। तो आप उनके कृष्ण हो जाएंगे, नहीं, नहीं, नहीं उनके जी, मैं भगवान हो ऐसे जाएंगे, उनको गाइड करने वाले हो जाएंगे, उनके, समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप उनके एक गॉडफादर हो जाएंगे, या उनको एक मार्गदर्शन देंगे, तो वहां पे आपका और उन लोगों का रिश्ता गोपियों और कृष्ण वाला होगा। हम कितना भी सोचें, देखिए, हम अपनी वो कृष्ण भगवान के बारे में बात करते हैं, देखिए राधा जी ने भी शादी की थी। ऐसा नहीं था कि वो राधा जी ने शादी नहीं की, वो भी उन्हीं में से एक थी, 1008 में से, लेकिन उन्होंने शादी की थी। तो कृष्ण भगवान और राधा जी का रिश्ता एक बड़ा प्योर रिश्ता था। ऐसे ही जो लोग मार्गदर्शन देते हैं, मैं तो कृष्ण को तो मार्गदर्शन मानता हूँ, दर्शक मानता हूँ, मार्गदर्शन देने वाले मानता हूँ कि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने कृष्ण को अपना सॉरी अर्जुन को ज्ञान दिया, पांडवों को ज्ञान दिया, युद्ध हुआ, ये सब होते हुए 1008 उन फीमेल्स को भी ज्ञान दिया जो उनकी बात को सुनती थी। तो उनके लिए जरूरी नहीं कि वो फिजिकल हो, मुझे मैं लगता है कि ये इसका, जी, सी देखिए, देखिए वही वही मैं कह रहा था कि लव इज़ नॉट नेसेसरी, इट हैज़ टू लव इज़ डेफिनिटली सेक्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ लव, ओके? एब्सोल्यूट, कि उसके बिना भी देयर इज़ लव, लव फॉर इट। इट इज, इफ यू यस, लव, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, समझो आपको स्टडीज़ है इसमें, आप यार उसके साथ थोड़ी सेक्स करने वाले हो, एक्सेट्रा, दैट इज़ प्योर लव फॉर व्हाट यू डू, यू सी? दैट्स व्हाट आई मीन एक्चुअली, जी, जेनेरिकली। हुँ? जी, और देखिए रमन जी, आप जो कह रहे थे ये सब, दैट इज़ वेरी गुड, बट इम्पोर्टेंटली मैं क्या ये आज के सेशन पे जो हाइलाइट करने वाला था कि देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ लव, सेक्स एंड जेंडर कि हम जो बार-बार में बात करते रहते हैं कि देखिए, दिस इज़ योर बायोलॉजी, दिस इज़ हू यू आर, और ज़रूरी नहीं है कि you will fall into love of your opposite sex only. It is not necessary. You know who you are. जी। Don't fight with it. डरो मत। ये सोसाइटी क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, सबसे पहले पेरेंट्स क्या सोचेंगे। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है सर? मैं दूसरों के, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी, मेरा जो जेंडर है, मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं एक मर्द की तरह बात कर रहा हूँ, एक मेरी लाइफ पार्टनर है, वो औरत है, और भी है दुनिया में जो हम दोनों जैसा नहीं है। तीन ही तो हम्म, देखिए तीन ही तो रमन लोग हैं दुनिया में, और रमन किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी जिंदा हुआ है। नहीं, 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 रमन जी, मैं मुझे कोई उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर की मान बात नहीं लीजिए, है। जी, प्लीज यू कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ओके, मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जो इंसान हु इज़ गोइंग थ्रू दिस, ओके?
इन्हें पता है कि व्हाट दे वांट एंड हु दे आर, वो सोसाइटी के लिए ऑलरेडी डरे हुए हैं, ठीक है, पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या है, मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि आप डरो मत, कम आउट ओपनली, यस, यू यस, आर, क्योंकि क्या होगा, एब्सोल्युटली। जितना अपने आप को सप्रेस, आप खुद अपने आप को सप्रेस करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू विथ योर लाइफ। आप सदा एब्सोल्युटली। डिप्रेस रहोगे, उदास रहोगे, काश हमने लाइफ में ये किया होता, और आई वुड हैव कम आउट एक्सेट्रा। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। जमाना बदल चुका है अब यार। वर्ल्ड में काफी कंट्रीज है जहाँ की बोलते हैं डेडिकेटेड डेज होते हैं। आजकल तो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको नाम, थोड़ा मैं सुन से गे प्राइड बोलते हैं एक्चुअली, मेरे ख्याल से कहाँ पर, यूरोप में कहाँ पर होता है, ठीक है। तो यू सी दे सेलिब्रेटेड, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस एक्चुअली हु आर ओपनली कमिंग आउट फर्क ऑफ, नहीं पड़ता, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जिंदगी मेरा एक, लॉन्ग एक मैं जाते हैं। आपको आज अपने अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। मेरे एक बहुत प्यारा दोस्त है, आज भी है, पूरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। वो, उसका नाम था जेरी, जी JERRY, जेरी। जी। वो लड़का मुझे, मेरे साथ 3 साल तक हम लोग IBM में काम करते रहे। मेरी तरह वो भी, जैसे हम बात करते थे वैसे करता रहा। हम्म, पता नहीं चला मुझे, एक दिन ना, वो, आपसे सच में बोल रहा बता रहा हूँ मैं, जो सच्चाई, मेरी जीवन की सच्ची घटना है। जेरी जी। अपने कमरे में बैठा हुआ रो रहा था। उस दिन हमारे घर में कुछ ऐसी बात हुई कि हम लोग उसके घर पे चले गए। हमारे ऑफिस में कुछ ऐसी बात हुई थी कि हम उसके घर चले गए। वो अपने कमरे में बैठा रो रहा था। मुझे देख के उसने टॉवल लपेट लिया अपने ऊपर, जैसे एक लड़की लपेट लेती। मैं उसको गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने टॉवल लपेटा था, तो वो मुझसे ऐसे थोड़ा शर्माने लगा। मैंने उससे हम्म, पूछा, मैंने कहा, जेरी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? ही सेड यस, एवरीथिंग इज गुड। वो बाथरूम में चला गया, बाहर आया, आकर के फाइनली हम लोगों ने बात बात की, 1-2 घंटा बैठे। फाइनली टोल्ड मी दैट इज अ गे। ही सेड इज अ गे। आई सेड, व्हाट्स रॉन्ग अबाउट दैट यार, इट्स योर, यू नो, आप जो सोचते हो आप वो हो दुनिया में। हम्म, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। आप सोचते हो कि आप एक गाइड हो, तो आप गाइड हो। आपकी सोच के हिसाब से ही आपका जीवन है। उस दिन से आज तक, I was not sure कि this show is about, other sex and all. I could have called him. अगर इस होता तो मैं उसको बुलाता। हम्म, मैं उसको, उस लड़के के अंदर इतनी काबिलियत है that he can accept his whatever he is. Our friendship, your friendship doesn't, it's not based on what you are. हम्म, क्या एक लड़की, क्या एक लड़का, याद, क्या फर्क पड़ता है? जो है वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, और मैं ये कहता हूँ कि किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जीना छोड़ दो, कि वो ये एग्जैक्ट कहेगा तब हम जिएंगे, या एग्जैक्ट वो क्या कहेगा, या वो क्या कहेगा। अरे यार, किसी ने कुछ कहना ही नहीं है, और कहेगा भी तो आपके फर्क क्या पड़ता है? एग्जैक्टली। कुछ फर्क। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, पर बात नहीं ऐसा, मुद्दा ऐसा था कि नहीं। जिसमें रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे 1-2 दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत प्यारे दोस्त हैं वो मेरे। वो अपने आप में क्या सोचते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो हम्म, मुझसे दोस्ती रखते हैं, मैं उनसे दोस्ती रखता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम लोग मिलते हैं, तो मेरे कंधे पे सर रख के रोना पसंद करते हैं अगर उनको कोई दुख होता है। और मैं भी कभी कभार उनके साथ बैठ करके बात करना पसंद करता हूँ जब मुझे प्रॉब्लम होती हम्म, है। तो ऐसे दोस्त होने के लिए, या कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, फर्क क्या पड़ता है? और प्यार बताऊं, ये भी होता है, ये भी प्यार है, कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं। हम लोगों के बीच में कोई कोई किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। उन भावनाओं के आधार पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्यार इसको कहते एग्जैक्टली। हैं, सच में प्यार इसको कहते हैं। इसमें सेक्स नहीं है, इसमें कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसमें कोई उसमें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बदतमीजी ही नहीं नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है उसमें तो। जस्ट प्यार है, प्यार प्यार है, दैट्स इट, इट्स दैट स्पेशल थिंग है। उसमें कोई यस। रिक्वायरमेंट भी नहीं है एक्चुअली। जी। कभी आप गंगा किनारे बैठे हैं? मैं कभी नहीं गया हूँ जी, सॉरी। नहीं गए हैं।
आप रहते कहाँ हैं पहले ये बताइए? आप मतलब नहीं, इंडिया में नहीं रहते? मैं लंदन में रहता हूँ, पर मैं बॉम्बे से हूँ एक्चुअली। और तो मैं ओके, बॉम्बे और महाराष्ट्र में घुमा हूँ, राजस्थान में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मारवाड़ी है, तो दैट्स इट, इसके सिवा ओके। और कहीं इंडिया में गया नहीं हूँ। कभी हो सके तो गंगा किनारे जाएँ, आप जी। जाएँ, बनारस चले जाएँ, हरिद्वार चले जाएँ और कलकत्ता चले जाएँ, कहीं भी जहाँ आपको गंगा मिले। शुड आई बी बस एक्सपेक्टिंग समथिंग, रमन जी? सॉरी, आई मैं डिडन्ट नहीं, गेट यू। आप जो कह रहे हैं गंगा 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 चले जाएं एक्सेट्रा, मतलब जी, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, आई मीन? आई लेट यू नो। See, when you when you sit on the bank of Ganges, you call it Ganges, गंगा या बोलता हूँ मैं तो माँ गंगा बोलता मैं हूँ भी मैं। गंगा ही बोल। जी, गंगा माँ के किनारे बैठेंगे ना जब आप, हम्म। आपको प्यार हो जाएगा। कोई भी अच्छा। नहीं होगा, पर प्यार होगा। जी। जी। आप जी। वहां बैठेंगे, जब आपको वहां से मतलब वहां नहीं बैठना है जहाँ पे दुनिया भर के वो बने हुए हैं, हम्म। जिसको बोलते हैं गंगा के किनारे। आपको बैठना वहां है जहाँ कोई नहीं है, जहाँ आप जी। और माँ हो, माँ गंगा हो। आप आए लंदन से, यहाँ आए, कभी भी लंदन में मेरा कजन रहता है और वो भी आप ही की तरह होगा शायद। वो भी मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं लोग वहां जा करके, लेकिन आपको देख करके ऐसा लगा नहीं कि आप लंदन में रह करके और प्यार की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ। है। हम्म। सी देखिए, अ, मैं शुरू से कहता हूँ कि मेरी मेरी थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, और जो मेरे व्यू पॉइंट्स है वो थोड़े अनऑर्थोडॉक्स है। आई डोंट नो वेदर आई एम cursed or gifted with it, but yeah. नो, यू आर गिफ्टेड, यू आर गिफ्टेड, गिफ्टेड, uh, ट्रस्ट मी। थैंक यू। थैंक यू, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप, ले लेता हूँ मैं। जी जी, बिल्कुल लेना पड़ेगा आपको। रीजन मीन कि जो पता क्या है, मैं बहुत टाइम से वरुण, मेरे मतलब वरुण के शो के आना, आई एम ऑनर्ड कि मैं आपके शो का पार्ट हूँ। वरुण इज एवरीथिंग फॉर मी। वरुण जी जो है वो मालिक हैं हमारे, हम तो नौकर हैं छोटे से उनके। और आपकी ये बात सुन के ना, मैं तो सुनता रहता हूँ, बीच बीच में आता हूँ कभी कभार सुनने के लिए। और जब सुना तो मुझे लगा कि मुझे पार्ट होना चाहिए इस शो का। मैं बोल रहा हूँ कि प्यार के लिए सेक्स का कोई लेना देना नहीं है। प्यार प्यार है। जी। प्यार आप। आपको आप मुंबई के रहने वाले हैं, मरीन बीच पे आप बैठे होंगे, जब ताबड़तोड़ पानी लगता होगा उन पत्थरों पे, तो आपको प्यार होगा। जी। जी। जब आप विक्टोरिया टर्मिनस के बाहर से निकलेंगे, आप देखेंगे अपनी हिस्ट्री को, अ, अपने कल्चर। मुंबई को, तब आपको प्यार होगा। जब एब्सोल्युटली। आप मारवाड़ी हैं तो आप राजस्थान में जब जोधपुर के किले देखेंगे तो आपको प्यार होगा। और जब आप जयपुर में बैठे हुए वहां पे जल महल के बाहर बैठे होंगे तो आपको प्यार होगा। ये सब चीजें, ये प्यार के लिए कोई जरूरी नहीं है, सेक्स वेक्स का कोई लेना देना नहीं है प्यार से। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। बता, सी। जी, प्यार तो कभी भी कहीं भी किसी भी चीज से हो जाता है। प्यार तो एब्सोल्युटली। बीवी से भी हो जाता है, प्यार बीवी से भी हो जाता है कभी कभी। मैं वहां पर ही पार्क कर देते, बीवी से भी हो जाता है। that is something I think कि बीवी से भी हो जाता है यार। बताओ, जिसके साथ 24 घंटे रहते हो आप, जो आपको गालियां देती है, जो आपको पीटती है, मारती है और बर्तन भी धुला लेती है कभी कभार, चाय बनवाती है सुबह सुबह, तो उससे भी हो जाता है। तो फिर तो यार किसी से भी हो सकता है ना। एक सवाल आया है आरजी दरक का, मैं इनका सवाल ले लेता हूँ। इनका सवाल है, कैन अ मेल एंड फीमेल, क्या एक मर्द और औरत नॉट बी इन अ फ्रेंड, क्या वो सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? क्यों सोसाइटी उनकी दोस्ती को दूसरी तरीके से देखती है? वेल, ऑलरेडी यस, आई वुड से, हाँ, एक मर्द और एक औरत दोस्त हो सकते हैं। there's no issue with that। और कहाँ पर, I'm not I'm not clear on your question, is that even a question? क्योंकि yeah, that's fine, आज की तारीख में मे बी शायद जी, आपका हो सकते हैं, हो हम्म, सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं तब तक जब तक एक बेड पे नहीं है। विश्वास करें। इन ओके, चलो चलो,
देखिए देखिए रमन जी, मेरी काफी दोस्त दोस्त हैं। दे विजिट माय हाउस एंड एवरीथिंग, ठीक है, जैसे लंच पे हम लोग एक्सेट्रा। और मैं अकेला रहता हूँ, मेरे कभी हफ्ते में बच्चे हैं, बट दैट डजंट मीन एक्चुअली कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। दोस्त दोस्त है, दैट्स इट। दे ऑल मैरिड पीपल एक्चुअली, सी फाइन, उससे और कुछ ज्यादा नहीं होता है। इट्स गरज जी, देखिए देखिए, आपका जो सवाल है ना वो सही है एक्चुअली, आप सही कह रहे हैं। बट इट डिपेंड्स, दिस क्वेश्चन वेरीज। आई थिंक योर क्वेश्चन वेरीज विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर। आई थिंक that's maybe the question, that's the reason you asking that question। आप सही कह रहे हो कि डाउट क्यों करते हैं, एब्सोल्युटली। ये आपका जो सवाल है, हम एक और मैं ले लेता हूँ। ओहो, एक आपके लिए है, रमन जी। सावी सिंह जी जी। का कमेंट है। रमन सर गॉट पॉइंट, बीवी से प्यार हो जाता है। सही है। ये सच्चाई है। सही है, ये भी सही है। एक और है कि अशुर वेल जी का सवाल है। अशुर वेल जी का, डज लव रिक्वायर बीइंग विद समवन, थॉट्स ऑन वन साइडेड लव, व्हाई कांट समबडी। यार बहुत सारे सवाल हैं, तो एक एक करके लेना पड़ेगा। इन्होंने लगता है बौछार कर दी है एक ही कमेंट में सवालों की, अश्विन वेल जी ने। एक एक करके लेते हैं। जी। Does love require being with someone? The answer is yes and no. With someone, if you fancy someone, ये उसका जवाब है। No in the sense कि if you're in love with your work, what is that someone? It's not a body actually, you see. I mean, it's not another human being. Am I right on that? So, yeah. Thoughts on one-sided love. यार आपने यार मेरे बोलते ना करे मेरे जख्म पे फिर से बोलते क्या बोलते हैं उसे, नमक लगा दिया। नमक। हाँ, one-sided love. I love maths and science, but it's a bloody one-sided love. They don't love me back. Maths and science. ठीक है? So thoughts on one-sided love. One-sided, no jokes. Yes, Ashnur. One-sided love. Yes, there's always happens actually one-sided love. Ki you love that person, but that person doesn't even know about you actually, because you haven't even. My apologies. I say. Um, you haven't even expressed, oh, that person is already in love with someone, and so on and so forth actually, yeah, that's fine। काफी काफी तो क्या बोलते हो, इन्फैक्चुएशन हो जाता है कि आपको अपनी दोस्त की नवी नवी शादी हुई है, उसकी बीवी के अंदर यू फाइंड समथिंग स्पेशल ओवर देयर। व्हाई? बिकॉज यू सी समथिंग स्पेशल अपने एक बोलते हैं इमोशनल ओकेजन के थ्रू होए हुए एक्सेट्रा। you see, even that it could be possible, so it is one sided love, you see, lots of reasons। why can't somebody just love and wish well for one? Why does society or self always want to label, box things, define? Hmm. I'm not clear on that question, the last bit of it, Ashur Velji, I'm afraid. So I don't have an answer for it। और आप फिर से अगर एक्सप्रेस करेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। um, okay, that's a very good one, Rachna। Actually, you have made a very good comment over there। Rachna जी का comment सुनिए रमन जी। We are bringing living room conversations on a global scale। Let's just go with flow, everyone brings something to the table। Okay। Actually you're right, actually we are bringing the living room। और उसमें कोई गलत नहीं है यार, because we all do it। इसमें क्या गलत बात है? इसमें मुझे कोई शर्माने वाली तो बात इसमें लग रही नहीं है, ठीक है। और स्पेशली ये देखें कि उधर शर्म आती है, इज्जत का क्या होगा एक्सेट्रा। यार एक बार जिन जिन के बोलते हैं ना बच्चे हुए हैं एक्चुअली, उनकी वाइफ से जाके वो लेडी से उन वुमन से पूछे कि जब लेबर में रहती है यार, इज्जत टेबल पे ऐसी खुली पड़ी रहती है, तो कहाँ शर्म बाकी रह जाती है उसके बाद। You see, so what's the matter in talking about it? क्या हम इंसान नहीं है? This is what we all do actually। So what's wrong? Open up। Nothing wrong about it। ठीक है। um, जी, बिल्कुल। ठीक है। um, बोलिए रमन जी, बैक टू यू। जी, मैं बस आपके साथ ही चल रहा हूँ कि जो आपकी बात थी बिल्कुल वाजिब थी। इसमें ऐसा लगता है कि देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग ना ड्यूअल पर्सनैलिटी हैं इंडियंस। हम अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से थोड़े से अलग हैं। हम लोग बाहर से घूंघट ओढ़ते हैं और बच्चे पैदा करने में नंबर वन है, हिंदुस्तान नहीं।
हाँ। हम लोगों की प्रॉब्लम है। हम लोग ना औरत हमारी घूंघट ओढ़ के पूरे हिंदुस्तान में घूम लेगी, शक्ल नहीं दिखेगी, लेकिन उसके बच्चे गिनोगे तो अब अभी थोड़ा सा शायद बदलेंगे हम लोग, शायद बदलेंगे। ये रमन, एक हम लोगों की। जी। रमन जी, सॉरी इंटरप्ट करूंगा ताकि मेरा ये जो क्वेश्चन है दिमाग से नहीं निकल जाए। ठीक है, आपने आपने जो पॉपुलेशन की बात की है, पॉपुलेशन में नंबर वन एक्सेट्रा। अभी पुराने जमाने में तो एक्सक्यूज था कि बोलते ना कि ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है, कॉन्डम्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, या फिर एक्सक्यूज था हमारे जमाने में यार टीवी नहीं थे, ठीक है, तो हाँ टाइम पास करने के लिए चलो हो गया, मशीन शुरू ऐसा की। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जी। आज की तारीख में अब तो बोले सब कुछ प्लीज। है, फिर क्या रीजन क्या है? हम्म। तो आज की तारीख में रीजन तो बताता हूँ ना। बता। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होने का शौक है हम लोगों को। ओके। हम लोगों को मल्टीप्लाई होने का। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, हिंदू के साथ प्रॉब्लम नहीं है अभी इस टाइम में। हिंदू अपने एक या दो में सेटिस्फाई। मुस्लिम्स ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ चल रहे हैं। देखिए, मानिए मेरी बात, ये सच्चाई है। मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने दोस्त हैं जो मुस्लिम्स हैं। मैं किसी का बुरा नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं मानता हूँ। वो उन लोगों का कल्चर ऐसा है। उन लोगों को लगता है कॉन्डोम यूज करना धर्म के खिलाफ है, उनके मजहब के खिलाफ है। उन लोगों को लगता है उनके जो गुरु बोलते हैं वो मतलब बैठे हुए बात करते होते हैं हम इस बात को। नहीं 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 नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है। अरे बाबा, ऊपर वाला थोड़ी बोलता है इतना ताबड़तोड़, यार रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। नहीं समझते। ओके, गुड गुड क्वेश्चन, ठीक है। आई मीन सॉरी, सही सही कह रहे हैं आप जो, ये भी सही है। हम एक और बात पूछना चाहूंगा रमन जी आपसे, जी। कि इंडिया में देखो, इंडिया की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहां पर से आता हूँ और पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो दस नथिंग टू हाइड अबाउट इट, और इसमें कोई गलत बात नहीं बात कर रहे हैं, कोई एम्बैरसिंग भी नहीं है। सो हम क्या क्या सोचें इस बात को, आज के टॉपिक को लेके, कि इज इट जस्ट सेक्स, वो इज इट लव? क्योंकि पॉपुलेशन तो काफी बढ़ गई है फैक्चुअल वे में, एंड इट माइट बी अ वेरी अब्रप्ट आंसर टू इट एक्चुअली, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही थोड़ा टेढ़ा है, यू सी। तो ये क्या है एक्चुअली, इज दिस जस्ट सेक्स? ना तो न, आप न, क्या न, कहते हो? ये ना तो, ना ये सेक्स है, ना ये लव है। एक अलग ही दुनिया है। हम्म, आप यहाँ पे सोशल फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। देखिए, हम्म, शुरू कैसे होता है। एक लड़के की शादी 21 साल में हो जाती है। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, वो कानूनन रूप से शादी और बच्चे पैदा करने के लिए सही है। ये हमारे हम्म, हिंदुस्तान का कानून बोलता है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हालांकि उससे पहले भी हो जाता है लोगों की। मेरे एक कजन की शादी 18 साल की उम्र में हो गई। He was just 18 years of age and he got married with a girl who was just 17 and a half. तो यहाँ शुरुआत होती है। शुरू ऐसे होता है कि 21 साल 18 साल की उम्र में, जिसको हम कानूनन बालिग बोलते हैं, वहां पे शादी होती है। उन पे सबसे पहले माँ प्रेशराइज करती है। वहां शुरुआत होती है। वो बोलती है मेरे को पोते का मुंह देखे बिना, शी इज अराउंड 50 years of age, and she is asking from his son, her son, that would I be able to see a face of my grandson? वहां से शुरुआत होती है। अब ग्रैंडसन के चक्कर में बेटा 21 साल की उम्र में लग जाता है अपनी 18 साल की बीवी के साथ, कि ठीक है भाई, मुझे अब ग्रैंडसन देना है अपनी माँ। अभी वहां पे ग्रैंडसन हो या ना हो, ये तो ऊपर वाले के हाथ में ना, ग्रैंड डॉटर भी तो हो सकती है। तो अभी वहां ग्रैंड डॉटर होती है। उसके बाद में वहां पे कलेश शुरू होता है। दादी को पोती बुरी नहीं लग रही है, ऐसा नहीं कि बुरी लगती है, बुरी नहीं लगती है, लेकिन पोता तो चाहिए। अभी वो 18 साल की लड़की जो 19 साल की उम्र में माँ बन गई है, अब वो 20 साल की उम्र तक बहुत जगहों पे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब जगह पे है, बहुत अभी पढ़ा लिखे हुए हो गए हैं लोग, एजुकेशन भी आई है, फर्क भी पड़ा है। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, मैं हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान की बातें कर रहा हूँ, जहाँ पे ये बातें होती हैं। फिर उसके बाद में प्रेशर होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बेटी हुई है, अब बेटा भी तो चाहिए, पोता तो दिखा दे, पोता तो दिखा दे। वहां पे जब पोता नहीं होता है, दूसरा पोता नहीं है तो तीसरा पोता, चौथा पोता, ये एक कॉज है। हम्म, उसके अलावा दूसरा कॉज बताता हूँ। जब किसी के घर में पहला बेटा हो जाता है,
तो वो ये कहते हैं कि दूसरा भी होना चाहिए। यानी दो तीन चार तो मामूली बात है, ये सिचुएशन है हमारे हिंदुस्तान में। दो ओके। बच्चे तो सबको चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होते। उसकी हम्म। वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है हम लोगों की। मेरे मेरे पेरेंट्स का काफी कंट्रीब्यूशन है इसमें। आई थिंक आई एम नंबर 7 एक्चुअली, थिंक सो। क्या बात है! हाँ 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 हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने तो ये बोला भी था, करे और 3 4 कर देना चाहिए था ना, क्रिकेट टीम हो जाती थी। कान के नीचे पड़ा जोर से, पेरेंट्स को ऐसे बता बोला बोलेगा था। माँ बाप से? आप अपने ऐसे- माँ बाप से ऐसे बोल नहीं सकते हो। चाहे लंदन में रह लो आप। नहीं नहीं नहीं, बाप मैं मारता है, माँ मारती है। हाँ। मैं मैं it was all right। मेरे मेरे आई थिंक वी वर क्वाइट, माय पेरेंट्स न्यू अर्ली एज की मेरी ह्यूमर बेबड़ा थी एकदम, तो इट वाज ओके, कोई बात नहीं। हम ठीक है। अच्छा देखिए, मैं अब थोड़ा मैं फिर से जेंडर पे जाता हूँ इस सब्जेक्ट को लेके। और जेंडर पे क्यों जाता हूँ, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि दिन ब दिन ना जमाना बदलते जा रहा है, ठीक है। और जमाना बदलते नहीं जा रहा, दिस इज हु वी आर एक्चुअली। और लोग रियलाइज करते जा रहे हैं, ओपन अप होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत हेल्प कर रहा है इस बात को, राइट। और क्या हो रहा है कि लोग हु दे आर, उनको चाहिए जो हु दे आर एंड व्हाट दे वांट टू बी, पर लोग छुपा रहे हैं इस बात को। इश्यू क्या है कि आप छुपाओगे, एक ना एक दिन वो बाहर आ जाएगा कहाँ ना तो कहाँ, एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन द सेंस धोखा, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट है मेरी कि थिंक अबाउट इट, कि देर आर आप बोलते ना कि रहे, आप खुद से तो झूठ बोल रहे हो, आप किसी और से भी झूठ बोल रहे हो। तो प्लीज थिंक अबाउट इट कि तो व्हाट। वी इंडियंस, सॉरी टू इंटरप्ट यू एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आपको एक दो तीन चीजों का फैक्ट, जो शायद आप बहुत टाइम से इंडिया में नहीं है, तो आपको बता देता हूँ। हरियाणा में एक लड़के के मतलब 1,000 लड़कों के पीछे 830 लड़कियां हैं। पंजाब में 1,000 लड़कों के पीछे 870 लड़कियां हैं। और you can check this fact on Google, you can check this fact on internet, you would understand this sort of dual life we Indians are living. We need a शानदार, पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर सी लड़की फॉर सन, पर हमारे घर में लड़कियां पैदा होने में दिक्कत हो रही है। सर हम करेक्ट। लोग इतने, मतलब इतने घटिया मेंटालिटी रखते हैं हिंदुस्तान के लोग। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप लोग वहां जहाँ बैठे हैं ना, वहां पे जी। बिल्कुल ठीक सोचते हैं। यहाँ पे मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने कुछ लोगों से तो रिश्ता तोड़ चुका हूँ, इस बात पे रिश्ता तोड़ चुका हूँ कि उन लोगों ने लड़की होने पे खुशी नहीं मनाई, उतनी खुशी नहीं मनाई जितनी एक लड़का होने पे होनी चाहिए। नहीं नहीं, रमन जी, सॉरी रमन जी, लेट मी इंटरप्ट ओवर हियर। ये इंडिया की बात नहीं है, ये यहाँ लंदन में भी ये इश्यूज हैं, ठीक है। आई होप सो आई एम स्पीकिंग अ बिट लाउडर नाउ, मिस्टर दरक, फॉर यू। देखिए इश्यू क्या है कि वो जो मानसिकता जो मिली है वॉट एवर जनरेशन से, ये यहाँ लंदन में भी वैसे ही कि लड़का पैदा हुआ है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, लड़की पैदा हुई है वो नॉर्मल काउंसिल, जो हम लोग म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं इंडिया में, काउंसिल की स्कूल में जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर भी वो इश्यू है। और आप जैसे कह रहे हैं ना, मैंने कई दोस्तों से अपने बात करना बंद कर दिया, मैंने भी वही किया है। एंड दिस इश्यू इज देयर। बात क्या है कि ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, ये पुराने जमाने की देन है, वो जो विरासत में मिली हुई है, नहीं आज तक समझ में नहीं आता है मुझे। पर मुझे ज्यादा गुस्सा उस डैड पे नहीं है, उस मम पे है कि वो होने कैसे दे रही है उसकी बेटी के साथ नाइंसाफी। किसी लाइक वो कह रहा है और डैड कहता है कि जेंडर के हिसाब से ये मेरा बेटा है, ठीक है, मेल है, फाइन वॉट एवर है ना, वो जो कुछ भी उसकी मान सकता है कि आगे चल के ये हमें 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 सपोर्ट देगा, रोटी खिलाएगा, वॉट एवर एक्सेट्रा। लंदन में भी बैठ के ऐसे सोचते हैं लोग। तो अच्छा। आई डोंट, हाँ हाँ, ये बोलते ना, दिस इज नथिंग गॉट टू डू विद कि इंडिया में ही है और बाहर भी नहीं है। ये यूएस में भी ऐसे हैं, ऐसे ऐसे केसेस आपको आज के तारीख में भी मिलेंगे।
पर क्या है कि इंडिया में आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन नंबर्स बढ़े तो नंबर्स भी ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। और प्लस काफी रूरल एरिया है ना इंडिया में भी। और कहाँ, इंग्लैंड यूके है भी कितना, नाखून बराबर तो है इंडिया के सामने, इसी बड़ा मेन तो पॉपुलेशन भी कम है, पर फिर भी यहाँ पर भी आज भी है माइंडसेट्स लोगों के। और आप कंट्री साइड में जाएंगे यूके में, वहां पर भी वैसे ही वो जेंडर जेंडर बोलते हैं ना, जो जो मैं आप कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने शुरू से मेरे सेशन में कहा था कि आई एम स्पीकिंग जेनेरिकली, फॉर जेनेरिकली नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। कि आप मेट्रो सिटीज के बाहर जाएंगे वहां पर भी आज भी ये इश्यूज है। मैंने मेरा एग्जांपल दे दिया था, मेरे खुद के लाइफ की स्टोरी बता दिया था। ये जो मेरी जो एक्स वाइफ है, शी कम्स फ्रॉम कंट्री साइड, शी इज अ कंट्री गर्ल, ठीक है। अंग्रेज है, गोरी है, ब्लॉन्ड है, ठीक है, वट एवर है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहती है। बट नो, ये अभी भी है ना कंट्री साइड में भी वही है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, इसलिए खुद को सप्रेस करके रखो, सप्रेस करके रखिए, फिर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, बिल्ड होता है, डिप्रेशन में चले जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, यू सी लॉट्स ऑफ दीज थिंग्स कम आउट। और जो आपका जो लाइफ में जो गोल रहता है करियर बनाने का, एवरीथिंग गेट इम्पैक्टेड फॉर ऑल दिस थिंग। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत है। मैं तो ये सोचता हूँ कि कभी कभी मेरा एक बेटा और एक बेटी है, बेटी बड़ी है। तो मैंने अपनी बेटी के नाम पे अभी इस टाइम पे विद इन लास्ट 3 मंथ्स आई हैव रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट 157 ब्रांड्स इन द नेम ऑफ माय डॉटर, मेरी बेटी के ठीक। नाम पे। तो उसके लिए अभी आज मेरा इनॉग्रेशन भी था एक फैक्ट्री का। आज वो रखा है, मैंने नींव रखा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो ही मेरे घर में सबसे ज्यादा लक्ष्मी लेके आती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन लोगों का यहाँ पे मैं देखता हूँ कितनी ही भाग्यशाली बेटी हूँ। बेटियां हमेशा भाग्यशाली होती है, मैं एक एश्योरेंस दे सकता हूँ। कोई भी इंसान अगर ये सोचता है कि बेटी हमारा दुख लाती है या बेटी से होने से कुछ नुकसान होता है, तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि घर में बेटी होना भाग्य का सूचक है। और इतना ही कहूंगा। चलिए, हम लोग टॉपिक कोई और था, कहीं और पहुंच गए। चलो, बात करते करते कहाँ से कहाँ आ गए। अच्छी कोई बात बात है, चलिए, कहीं ना कहीं पे सोशल कॉज है, हम लोगों को नहीं, जुड़े रहना चाहिए। कोई बात कोई यू नो, बात चलिए। अप्रिशिएट करूंगा। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब नेवर सीन यू ऑन वरुण शो अर्लियर, आज मिले हैं तो आगे भी मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। गॉड मेरा ब्लेस मंजू, यू। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई विल टेक योर लीव, और एंड फिर हैव अ मिलूंगा गुड जरूर नाइट। आपसे। जी, थैंक यू। जी, Okay. I'll take some questions. I saw some nice questions actually scrolling. Let's see if I can get back on them. एक क्वेश्चन अच्छा आया था। Nipunji, I don't know the term IAS, I'm afraid actually, so I don't know your whole. Okay. Nipunji का एक सवाल है, lot of IAS or cream of society come and ask for boys, even knowing it's a punishable act under PNDT. That is prostitution, bro. I would say that is prostitution. You see, that is, of course, there is sex involved into it with a gender preference. That's prostitution, and of course, if it is against the law, it's illegal. And so, mm, individual choice. क्या करें क्या नहीं करें उनका choice. It's illegal. Full stop. वही वो होता है. Ashur Velji, I can see a question flashing over there. Does love require being with? No, I think I've answered you. The last bit of yours, I wasn't clear. Why can't somebody just love and wish well for one? Yeah, can actually. But देखिए क्या है कि अशुभल जी, अगर मैंने आपका सवाल अगर सही तरीके से समझा है ना, क्या होता है कि वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है और ब्रेन वॉश हो गया है कि एक लड़का लड़की अगर इफ दे गोइंग ऑन तो डेफिनेटली उनसे एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है। जैसे कि बोलते हैं ना, शादी होते ही हमें पोता पोती चाहिए तो एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है। चाहे फिर बाद में उसमें कंफ्यूजन क्या है कि एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ा दिया, और बायोलॉजिकली अगर वहां पर अगर देयर इज समथिंग इश्यू ओवर देयर, एंड दैट इज PNDT, prenatal gender screening. Okay, thank you, Girjani.
Guys, I think so. We have been live for 1 hour 49 minutes. Be there for another 5 minutes and then wrap up. If someone wants to join or have any questions, please do ask me. But कोई बात नहीं, टेंशन नहीं. ओके, थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया रहेगा. नेक्स्ट सेशन मैं करूंगा और उसके अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्गर जाएंगे और बैरियर, लेट्स गो अ बिट लाउडर, ओपन अप होते हैं डायरेक्टली. इसमें कोई गंदी बात नहीं है बात करने की. सेक्स इज सेक्स. व्हाट अबाउट इट? एवरीवन डज इट. ठीक है. और एक और मैं बात बोल रहा हूँ कि सेक्स इज वन ऑफ दोस थिंग्स एक्चुअली यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. आप जितना उसको छुपाओगे उतना आप डिप्रेस रहोगे. जितना आप उससे छुपाओगे या उससे बोलते ना अगेंस्ट जाओगे, यू विल बी डिप्रेस्ड. डिप्रेस्ड इन द सेंस योर बॉडी नीड्स इट. ओके, योर बॉडी नीड्स इट. दिस इज हाउ वी आर डिजाइन. इसीलिए हमारी एक पीरियड होती है, पीरियड इन द सेंस की एक एज होती है, ठीक है, जिसके थ्रू वी गो थ्रू दैट थिंग. एंड this is how we grow. Actually, our body grows, in different, based on gender, I would say, feminine body, male body, etc. That's how it goes on, actually. So it is a mandatory and an important requirement. Nothing wrong with it. Nothing wrong to talk about it also. Absolutely nothing wrong. मैं अब कह रहा हूँ, अब ये भी कह देता हूँ, स्मॉल प्रिंट रीड कर देता हूँ कि भैया सोच समझ के जगह देखो और समय देखो बात करने में, अगर आपको बात भी करना है. ऐसा नहीं करे एक बोलते करे रहने दे यार. um, ask for boys kids. Girjaji, yes, what he means is highly educated people ask for boy kids. Yes, absolutely right. This Girjaji, this demand for male gender, I preference, or I would say, for male child, I would say, ये वो जो बिलीफ है ना कि वंश आगे बढ़ना चाहिए, दिस इज द बेस्ट आई कैन से. ये माइंडसेट वहां पर से. और एक और होता था कि ही विल बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, या एक दिन हमारा नाम आगे जाके बढ़ाएगा फैमिली का. सो इट इज स्टिल एक्चुअली पीपल बिलीव इन टू दैट, सॉरी निपुन, दैट वाज योर स्टेटमेंट. सो निपुन, दिस इज व्हाट अभी भी लोग हैं जो कि ये दिमाग से चलते हैं, जो कि ये नहीं समझते हैं कि इट डजेंट मैटर कि बच्चा बच्चा होता है, irrelevant of their gender. And nowadays any gender can do anything. It doesn't matter whether it's a male, female, or other. They all can do it. All you have to do is just support them, guide them, and appreciate who they are. That's what it is more important than anything. आप सप्रेस मत करो, आप सपोर्ट करो, आप मोटिवेट करो. अगर कोई अगर सामने से आके या फिर आप रिकॉग्नाइज भी करते हो, तो यू मेक श्योर दैट यू सपोर्ट देम इन दैट वे यार. सप्रेस मत करो. सप्रेसिंग इज रॉन्ग. सप्रेस इज गोना बैकफायर वेरी बैडली. आप सप्रेस तो उनको करोगे, मगर एक दिन वो सप्रेशन फटेगा, देन इवन योर इट्स गोना बैकफायर एट यू. तो गुड लक विद दैट. Uh, yeah, that's illegal, Nepunji. What you're saying now, government and everything, pre and everything, that's absolutely illegal, in my opinion. And I would say it's just wrong. Very, 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 very wrong. मैं तो ये एक्सटेंड तक कह दूंगा कि बिकॉज ऑफ दिस, अगर कल ना, अगर जो पेरेंट्स जो है डिसाइड करते बाद में चेक होने के बाद कि जेंडर क्या है, and they decide to drop it, in my opinion, that's a murder. That's just wrong. You have no rights to, you don't have any rights to decide कि क्या जेंडर का होना चाहिए. It's just simple bloody wrong. Okay? Um, teens exercise. Now that's a very good question actually, and a very nice one. I like your question. Um, Girjaji, or RNS, Rachna, can I request you to flash Teams Tanya's question, please? Sorry, I don't have admin permission, so I can't flash Tanya's question, but I'll read it out actually.
It just caught my eye, and it's a very nice one. Tanya's question. Um, has it gone? Yeah. Tanya's question is: are you in favor if prostitution to be legal in India to avoid rape cases increasing? Actually, I would say yes. Okay, I would say yes. देखिए, हर हर एक चीज की एक जगह होती है, ठीक है। और ये मैं नहीं, आप अपने वो जो दुबई तमिजान है, अन्ना है, वो भी तो कह रहे थे कि हर एक जगह पर हर एक चीज के लिए एक जगह होती है दुबई में। दुबई इज ऑलरेडी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स दुबई, इट्स ऑलरेडी नोन ओपनली कि आपको जो कुछ भी करना है एक जगह है, वहां जाके करो जो कुछ भी करना है, दैट्स इट। And you're right, actually, Tanya, that yes, it will decrease, it will avoid rape cases क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड जगह है जहां पर आप यू कैन गो एंड हेल्प योर सेल्फ आउट, ठीक है। इट इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इन माई ओपिनियन, क्योंकि देखिए, इंसान, जब मैं कह रहा था हमारी जो एज ब्रैकेट है उसमें इतना कैरीड ओवर जो जा, ही नीड्स टू सॉर्ट इट आउट। मैं चलो मैं मेरी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं जब नवा नवा यहाँ आया था, पहली बात तो यार, बाजू में सब जगह, बाजू में धमाका ही धमाका। आई एम टॉकिंग अबाउट यू लेडीज, प्रिटी लेडीज, ओके। धमाका ही धमाका, शॉर्ट स्कर्ट, मिनी जीन्स, ये साइज, वो साइज, ब्लॉन्ड, ब्लैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एवरीवेयर। दिमाग खराब हो गया था देख देख के। और मैं सिंगल था, ठीक है। क्या करे क्या नहीं करे, यू सी, आई कुडंट फोकस इन माय वर्क, I couldn't focus every day into my normal routine, actually. You see, but then I found a girlfriend, right? So just imagine if all these young kids, when they are going through that period, that cycle of theirs, when they are growing, oh, men's, I would say, not only young kids, actually. Sorry, my apologies. Actually, that won't be right. I take my statement back. I would say all these people, who are going through that stage where who they are and they need that, to calm themselves down, help themselves out. I would agree with Tanya G's statement that yes, I would say it should make it legal. If you make it legal, means it'll be also monitored. Actually, crime rate भी वहां पर कम होंगे, ठीक है। This is just my opinion, actually, क्योंकि there are in countries where they have tested and they have done it, actually already it is legal over there and it has sorted a lot of issues out। एक डेडिकेटेड एरिया होता है, एक डेडिकेटेड लेट नाइट होता है, दिन में भंकस नहीं चाहिए, रात में एक पर्टिकुलर पीरियड में जो करना है करो जाके वहां पर, एंड इट्स ऑल सॉर्टेड, ओपन, एब्सोल्युटली ओपन होता है। okay, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। अब ये जो मैं कह रहा हूँ इसकी 10 बात अलग अलग बन सकती है। बनाना है बनाओ, गुड लक टू यू, कीप योर ब्लडी माइंडसेट टू यू, ठीक है। बट अगर सेंसिबली अगर बात करें ना, तो यस, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। Savi saying, why extramarital affairs so common? Is this some psychic disorder? Savi saying, what you said now, actually, I was going to go into that direction. ठीक है। पर क्या है कि समय बहुत हो चुका है, मगर आपका सवाल तो बहुत बहुत बढ़िया, आपने आज बहुत बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे। यस, मैं इसका जवाब जरूर से दूंगा। ये साइकिक डिसऑर्डर नहीं है, सावी जी। सावी जी, क्या होता है कि हर एक इंसान, इररेलेवेंट ऑफ जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल एंड इवन अदर्स ऑल्सो, हाँ, हर एक का एक अपना रिक्वायरमेंट होता है। ओके, बट आई एम सेइंग इन रिक्वायरमेंट, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, उनको कितना चाहिए, हाउ मच डू दे वांट। सम पीपल एक दिन में कर लिया एंड दैट्स इट, बात खत्म, यू सी, एंड ओ दे हैव अ सिंगल अफेयर एंड इट्स डन। सम पीपल डोंट, आर नॉट, still not satisfied with it, ठीक है, and that's where all these things happen। or some people actually, they just want to do it for the kicks, actually, you see, कि यार मैंने स्कोरिंग बनाई है, इतने मेरा सबसे ज्यादा स्कोर है, you see। So I think it goes over there, but there's a lot of thing in just this question now, there's a lot of thing over here which is going on and people don't understand it। आई वुड रादर, आई वुड से, इसीलिए है ना, देखिए, अगर आज के रेट में अगर देखेंगे ना, ये मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने देखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं मेरे एडवाइस आपको ऐसा नहीं करे, मैं एडवाइस भी नहीं दे रहा, मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ और आप कल से ये शुरू करो, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। हम से कि इसीलिए बहुत सारे जो ओपन रिलेशंस वगैरह एक्सेट्रा होते हैं, बिकॉज दे नो इट व्हाट दे वांट एंड हाउ दे स्टिल वांट टू बी together, but they absolutely they open for that relation for their own satisfaction, actually, because they recognize themselves, what they do is their business,
What they pick up, that choice is their business, not yours. It's not you to judge. Okay? That's their choice. They know what they're doing and what they want. It may be not meeting your eyes. आपके आंख के देखे यार ये तो गलत है, ये क्या हो रहा है, वो कर रहा है, ऐसी कैसी सोसाइटी भाई ठंडे रखे यार. That's none of your business actually. That is their personal private life. आप क्यों किसी के private life में घुस रहे हो वहां पर? Who gave you the right to interfere in someone's private life? No one, right? And on what basis are you saying that? Frankly speaking, अगर आपको मैं तो एक बात आपको कह देता हूँ, अब गलत लगेगी आपको शायद, पर कह देता हूँ. क्या आपको जलन हो रही है इस बात पे कि दे आर डूइंग इट मोर एंड यू आर डूइंग लेस, और यू ब्लडी कांट इवन गेट इट डन? ये इशू है क्या? सोच लो बेटा. और whatever, lady, etc. Om Shanti. Through my bro, through my bro is Mandat ka bacha after my sis and me. Okay, he's a top government bureaucrat, but doesn't take care of my parents. My sisters take care of them. Absolutely यार, ये जरूरी नहीं है कि बहुत प्रार्थना के बाद जो आया है, दैट इज गोना बी. आई टोटली एग्री विथ यू एक्चुअली. ये मैंने बहुत देखे एंड या होता है यार. एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए ना पहली. आज की तारीख में किसी से एक्सपेक्टेशन ही मत रहो. दैट्स व्हाट आई वुड से एक्चुअली. आई वुड जस्ट मेक अ कमेंट ऑन इट एक्चुअली. आई वुड सजेस्ट एनीथिंग. Coolio. Nipunji, we commonly use word India. It would be better to use city name as all cities and state has different cultures. Absolutely right, Nipunji. It's more than that. India is actually a subcontinent. ये देखा जाए तो ना इंडिया में बहुत सारी अलग अलग रेसेस है, कल्चर्स है, उनकी भाषा है, लैंग्वेजेस है, उनका खाना है, उनका पहनना है. ओके. और वट एवर है ना ट्रेडिशनल, आप देखे जाए तो, और उनके अंदर भी सब कल्चर्स आ गए. सो आई टोटली एग्री विथ यू. आप स्टेट्स के नाम ले या वट एवर ना एक्सेट्रा. फाइन. अब ओके, अगेन फ्रॉम तानिया जी देयर इज अनदर वन. Yes, Taneja, you're right. Actually, I know what you mean. I read about this. It is still happening. देखिए क्या है कि इश्यू क्या है कि ये अभी हम लोग क्या पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे यार इसमें. मतलब मैं कह देता हूँ कि आप जो कह रही हो ना तानिया जी, ये बात तो सही है. दिस इज फ्रॉम बाय द वे फ्रॉम टीम एस एस आर फॉर एवर. उनका कमेंट है, उनका नाम तानिया जी है. एंड शी इज कमेंटिंग इट, रिप्लाइंग इट बैक टू निपुन जी कि prostitution is being done all over the world, but in India, it is still under cover. Nobody pays taxes. Okay? Don't go for regular medical taxes. If this happens, women will be more safe in our country. ये बात बहुत बढ़िया कही है और ये अच्छी बात है एक्चुअली. आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि देखिए एक जगह रहेगा इसमें सेफ्टी, तो सेफ्टी वुमेन की नहीं, मेन की भी हो जाएगी. ठीक है, सेफ्टी. ओके. बट एक और है कि जो ये जो बीमारियां रहती हैं, ठीक है, आज के डेट में अगर ये कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल्ड इन द सेंस इफ इट इज नॉट मॉनिटर्ड. फाइन. एक क्या हो रहा है कि एक तो टैक्स की चोरी हो रही है, दूसरी क्या है कि जो बीमारी फैलती है, देयर इज नो कंट्रोल ऑन दैट. टू कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है उसको. राइट. और प्लस ये क्राइम रिकॉर्ड बढ़ रहा है. और अगर ये मॉनिटर्ड रहेगा ना, एवरी गवर्नमेंट अथॉरिटी, आई मीन आई एम टॉकिंग द पुलिस एक्सेट्रा व्हाटएवर, दे नो कि कहां पर क्या है. You see, they already knows about it because it is being monitored. Actually, they know it because they're allowing it. And plus, इज्जत बढ़ जाएगी क्या? Even the people who are running कि भाई we are taxpayers, so you watch your mouth. So दोनों साइड इससे बहुत सारे, मेरे ख्याल से बहुत सारे चीजें रिजॉल्व होती हैं. Okay, this is just my saying. It's a good one actually, Tanya. I think someday we should, you and me, we should make a session on this one. Okay, Pramod Mailar ji ka again for say my 2 cents on this. Anybody can do anything as long as doesn't break NY legal rules and promote anti-social activities. Okay. Awesome. All right. दोस्तों 2 घंटे हो गए. I am going to
take a move. गला सूख गया. Right. If no other questions, I would request one of the admins to please help me out so I can take my leave. And before I leave, thank you very much for listening to me. आज का ये जो सेशन है इसका गोल यही था कि मैं जानबूझ के जो मैंने जो वर्ड्स हैं ओके टाइटल में जानबूझ के रखे थे कि इट्स अबाउट लव सेक्स एंड जेंडर पर ये जो तीन वर्ड के थ्रू आप बहुत सारे यूट्यूब में अलग अलग एंड यूल सी द स्टैटिस्टिक नो 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 आई वांट टू यूज दिस वर्ड्स बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बट जो कि लोग या तो बात नहीं करते या शर्मा जाते हैं बात करने से. कोई शर्माने की बात नहीं है इसमें यार. ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल डू इट वी ऑल नीड इट. व्हाट अबाउट इट. बिग डील. ठीक है. एक्सलेंट. और मैं फिर से एक और कोई नवा सेशन रखूंगा मे बी रिलेटेड टू दिस वन. आई मेक इट बिट मोर. और मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखूंगा उसके बाद में. शायद मैं उस पर एज लिमिट फिर से दे दूं. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो कोई भी देख रहे हैं अगल बगल में देख लीजिए. अगर कोई अंडर एज है या सूटेबल नहीं है इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेक श्योर दैट either you move into a private place, okay, or make the private place by requesting that minor to move out. Okay. Next one, I'm going to increase the tone और भी जरा थोड़ा strong कर लेते हैं. Open up होते हैं etc. Let's see how it goes. इसमें से अगर कुछ लोग ने भी देख लिया I'm happy with that. I'm not interested in कितने व्यूअर्स बढ़े क्या नहीं बढ़े और कितने लोगों ने ट्रोल करना चालू कितने लोगों ने चैट में गाली देना चालू कर दी. Don't give a crap. Seriously. जो था दिल में जो फील हुआ जो देखा जो समझा बोल दिया शेयर कर दिया. Okay? And with this, thank you very very much. And I would request one of the admins to help me out, and we end it over here. Thank you very much, guys. You have the rest of your day or night an excellent one. Enjoy. Adios. So long.